Friends, please wait. We are starting the session within a minute. Very good morning to all. I, on behalf of Association of Corporate Advisors and Executives, welcome you all to this session of ACA 811. Friends, those who have been joining us regularly during the past lockdown days, must have known that we have already done almost 50 sessions during this lockdown period on varied topics. And today we have with us our own Rajesh Jain, CA Rajesh Jain, and our today's topic is future ready families and their businesses. Friends, as we all know that this lockdown and this COVID-19 will take a toll on almost everything in our life. And yes, the stress of this could also be felt across our families, across our businesses, even those who all are professionals and we are into profession and on a family profession, you can say. Definitely, all the heat will be felt across all the sectors of business and profession. So, uh, with this in mind, we have kept this topic for today's deliberation. And before I rather start the proceeding, today in the evening we are also having one more session at 5 p.m. You can join in through the same link as this morning. And this session is about emotional wellness 360, mental health, the lockdown and beyond. This session would be taken by Mr. Meenu Budhia, he is former director, Caring Mind, and Ms. Priyam Budhia, head New Initiative, Caring Mind. So, friends, do join us daily at 11 a.m. We are trying to bring before you the session and the discussion topic on various subjects, which I am sure that will definitely benefit you through this to overcome this difficult situation and difficult period. Friends, to introduce, as you see, most of us are here must be knowing Rajesh ji, but yes, it's my privilege to introduce him before this audience, this webinar audience. Friends, Rajesh ji is the author of a famous acclaimed book, Gods Are Meeting, and You Are Invited, which has been appraised and praised by media and by the eminent people, including APJ Abdul Kalam, KV Kamath, Varshi Kurian, Deepak Parekh, to name a few amongst them. He has also published a book on Roots and Wings, his first ever periodical on issue relating to family business. He is also author of book Chain That Liberate, Governance of Family Firms. It is published by Macmillan ISTD. Rajesh ji is also author of Family Business Essential, What Every Business Owner Should Know. Apart from this, he is speaker on Repute International Forum, including UN, and he has addressed many seminar and conferences in overseas in London, Toronto, New York. Apart from this, he has also been regular speaker on the subject, especially family business uh, in different part of India. And yes, at last, he is the chartered accountant and member of Association of Corporate Advisors and Executives. So, Rajesh, when I know there is a long list of introduction which I could go on, but yes, he has asked me to restrict to uh, the introduction. And yes, of course, we know more than I can speak about him. With this, I would request Rajesh ji, please start this session. We are eagerly waiting for your deliberation. Bhaiya, you can unmute yourself, please.
Yeah, right now. Hello. Is it fine? Yeah, it's fine. Absolutely fine. You can see the screen now? Yeah, I can see that. You can see. Okay. Good morning, friends. It's always a pleasure to be here with all of you and talking on a topic which is very close to my heart and on which I have been working for decades. This topic, future ready families and their businesses. I mean, I just can't imagine that about a month back, 40, 50 days back also, this topic was very relevant, very pertinent. I used to feel that so much of changes are happening and how the families will adjust, accommodate to these kind of changes. And I'll rather use English as my medium of exchange, considering that there is a wide range of audience we expect. So 20 साल पहले मैंने किताब लिखी थी, Jitu was mentioning, Gods are meeting and you are invited. This is the book actually. This is not available in the market, please. So don't look for it. In this, I imagined a situation कि एक आदमी की और इंटरनेट वगैरह की काफी एक अपकमिंग एक सिचुएशन थी. तो 20 साल पहले अगर कोई आदमी कोमा में जाएगा तो उसको कैसी दुनिया मिलेगी. Now, I am just wondering कि ये 20 साल की बात और अभी तो जो 40-50 दिन पहले कोई कोमा में चला गया और अभी आएगा तो उसको उससे कई गुना ज्यादा चेंज की दुनिया मिलने वाली है. So amid all this, how family businesses will adjust, what will happen, let us take a journey together in this small program. What's happening? This is not changing. Yeah, okay. So first thing, I'll be talking on a lot of things, and each of them I'll try to bring in the family element, something related to relationship. So just to begin with, what happens whenever we do a program जहाँ हम लोग कुछ change की बात करते हैं, तो आप लोगों ने सास बहू का सीरियल देखा होगा. तो अक्सर जब एक सास नेगेटिव रोल में होती है, तो बहू तिरछी नजर से अपनी सास को देखती है कि वो देख रही है या नहीं देख रही है, और बहू जब नेगेटिव रोल में रहती है तो सास उसको देखती है. मतलब हम लोग हर कोई चेंज को किसी दूसरे में देखना चाहते हैं. तो मेरा आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आज जो हम लोग जो भी बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, इसको अपने ऊपर सोचिए, किसी दूसरे के ऊपर में बाद में सोच लीजिएगा. ब्रिंग योरसेल्फ इन द सेंटर. इन एनी केस, इफ यू रिमेंबर, नेस्कैफे का एक बड़ा सुंदर एड आया करता था सम इयर्स बैक कि मॉर्निंग में कॉफी पीने के लिए एक हस्बैंड बैठा हुआ है डाइनिंग टेबल के ऊपर में, उधर से वाइफ आती है, जोर से प्याला पटकती है और हस्बैंड उसको ले लेता है. फिर उतने में फिर वो उसकी तरफ कुशन भी फेंकती है, तो उठाकर चुपचाप रख देता है कुशन को. वो फिर फेंकती है, फिर रख देता है, फिर फेंकती है, फिर रख देता है. कुछ देर यूं चलता है, उसके बाद में वो शांत होकर बैठ जाती है. तो बात जब चेंज की हो रही है तो एक फंडामेंटल सब्जेक्ट है कि हम लोग किसी दूसरे को नहीं बदल सकते हैं. उस हस्बैंड ने रिएक्ट नहीं किया. अगर ये यूं आ रहा है और ये भी अगर यूं आएगा तो फिर ये यूं एक्सप्लोजन हो जाता है. तो ये यूं आता रहे और ये यूं ही रहे तो थोड़ी देर में यूं आके ये ठंडा हो जाता है. तो इन एनी केस चेंज के बारे में साइकोलॉजिस्ट भी बोलते हैं कि वी कैन नॉट रियली चेंज द बिहेवियर ऑफ अदर्स. वी कैन ओनली कंट्रोल आवर ओन रिएक्शंस टू द बिहेवियर ऑफ अदर्स एंड प्रोबेबली मेक ए डिफरेंस देयर. हम किसी को बदल तो सकते ही नहीं. हम तो सिर्फ अपने व्यवहार को बदल सकते हैं, रिएक्शन को बदल सकते हैं, जिससे शायद कुछ परिवर्तन आ जाए. तो प्लीज शांत हो जाइए, अपने आप को सेंटर में ले आइए, किसी दूसरे के बारे में ज्यादा मत सोचिए. और दूसरी एक बात जो आप में से काफी लोग मेरे को जानते हैं, तो फैमिलिटी ब्रीड्स कॉम्प्लेसेंस एंड एट टाइम्स कॉन्टेम्प्ट. तो इसको ध्यान रखिए, एक बार मेरे को भूल जाइए, क्योंकि ये फैमिलीज में भी अक्सर होता है कि चूंकि हम लोग एक दूसरे को जानते हैं तो टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं. घर की मुर्गी दाल बराबर, तो कोई भी बात सुनने से उसका इम्पैक्ट नहीं आता है और वी ऑल बिकम लूजर्स. So just all these things are very relevant in the family context also. So this is just the beginning I wanted to make. Now, ये जो टाइम आ रही है, हम लोग डिसरप्शंस की बात काफी करते रहे, पर किस टाइम के डिसरप्शन को देख रहे हैं हम. आज के 10-12 साल पहले 2007-8 में ये फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी एंड उसने पूरी दुनिया को हिला दिया था. लोगों ने कहा कि 1930s के बाद में द बिग जो एक स्लोडाउन एक आया था, उसके बाद में ये सबसे बड़ा एक चेंज आया है और सबसे बड़ी मंदी आई है. एक उसकी बात हुई. उसके अलावा हम लोग बात किया करते थे कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग वगैरह से इंपैक्ट होकर काफी बड़ा एक चेंज सामने आने वाला है. तो एक उस डिसरप्शन के बारे में तो काफी बातचीत हुआ ही करती थी. और तीसरा, 2015 में बिल गेट्स ने एक टॉपिक उठाया था कि जो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो वर्ल्ड में आने वाली है वो प्रॉब्लम
किसी वायरस के थ्रू आने वाली है, तो बायोलॉजिकल डिसरप्शन। अभी अब अगर हम देखते हैं तो तीनों डिसरप्शन एक साथ हो गए। बायोलॉजिकल तो हो ही गया क्योंकि ये कोविड से शुरू हुआ है, तो बायोलॉजिकल है। इकोनॉमिक कंडीशन क्या हो गई वर्ल्ड की आप देख ही रहे हैं। और इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन, आई मीन इट्स सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कि आज हम लोगों ने हर काम कुछ इस ढंग से करना सीख लिया है जो पहले शायद हम कभी वैसे नहीं करते थे। जूम के थ्रू मीटिंग करने लगे। आज मैं कॉन्फ्रेंस आपको एड्रेस कर रहा हूँ, आप में से कौन लोग कहाँ से आए हैं पता नहीं है, इन फ्यूचर आई नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन टू दिस इज वंडरफुल थिंग टू हैपन, बट नॉट एवरीथिंग इज गोइंग टू बी वेरी वंडरफुल। हम लोगों को एक साथ कितना कुछ एडजस्ट करना पड़ रहा है इस चेंज के लिए। देखिए, अगर हम लोग पिछले 200 साल की हिस्ट्री को देखें तो एक पिछले 40-50 साल में चेंज का जो टेक्नोलॉजिकल चेंज की कर्व है वो इतनी स्टीप हो जाती है कि देखकर, अगर आप में से काफी लोगों ने एल्विन टॉफलर की बुक फ्यूचर शॉक पढ़ी होगी, जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि 20 साल के अंदर में टेक्नोलॉजी अपने आप को डेवलप कर लेती है। इसका मतलब क्या है कि ह्यूमैनिटी आज जहां खड़ी है, आज के 20 साल बाद में इससे डबल की लेवल पे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की टर्म्स में हो जाएगी। उसके बाद मूर्स लॉ आया, उसमें उन्होंने ये बात बोली कि 2 साल के आसपास में माइक्रो प्रोसेसर्स की कैपेसिटी डबल होती रहेगी। आज जब उस बात को 1950, 60, 70 के बीच में ये बातें हुई थी, और आज जब हम मुड़कर देख रहे हैं, मूर्स की लॉ को ही देखते हैं, तो पता चल रहा है कि 2 साल में, 1.5 साल के अंदर में माइक्रो प्रोसेसर्स की कैपेसिटी डबल हुई है। नाउ आप अपने इंडिया में वो एक स्टोरी भी काफी फेमस है कि किंग के पास में एक चेस का प्लेयर गया और उसने बोला कि मैंने एक नई चीज इजाद की है, तो वो काफी खुश हुआ उसको देखकर, बोला अच्छा ठीक है तुम रिवार्ड मांगो। तो उसने बोला कि मेरे को एक चेस के पहले दाने के ऊपर में एक चावल का दाना, पहले बॉक्स पे एक चावल का दाना रख दीजिए, दूसरे में उसको डेवलप करते चले जाए। उसको लगा ये क्या मजाक कर रहा है, एक दाने के ऊपर में, आई मीन इट हार्डली मैटर्स। एंड देन व्हेन ही स्टार्टेड, वी ऑल नो व्हाट हैपेंड कि हाफ ऑफ द चेस बोर्ड पहुंचते पहुंचते तो उनकी साम्राज्य बिक गए, सब कुछ हो गया। टेक्नोलॉजी के मामले में भी ऐसा लग रहा है, और जो जिस तरह के डिसरप्शन, जिस तरह के चेंज आ रहे हैं, अगर आप इस चार्ट को देखें नीचे वाले को, तो अगर हम लोग आज की सिचुएशन को देखें, 200 सालों में, 500 सालों में जो हुआ वो तो ऊपर में हम देख रहे हैं 50-60 सालों में, तो अगेन हम लोग वहीं खड़े हैं 20 साल के अंदर में वापस इस ढंग के चेंजेस हम लोग देखने वाले हैं। जस्ट कीप दिस थिंग्स इन माइंड। और हुआ क्या कि पिछले 20-30-40 सालों में एक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एक चेंज के कारण कितनी बड़ी दुनिया बदल गई। और अभी तो एक साथ कितनी सारी टेक्नोलॉजीज का कन्वर्जेंस हो रहा है, और ऊपर से ये रहा है कोरोना वायरस, और उसके बाद में वो अदर फैक्टर्स, और इकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल, सारे तरह के चेंज आ रहे हैं। जब जस्ट इमेजिन कि आज सारी दुनिया ने अपनी बाउंड्रीज को जो है एकदम टाइट कर दिया है, सारी कंट्रीज ने कर लिया है, सारी सिटीज ने कर लिया है, स्टेट्स ने कर लिया। आप सुन रहे हैं कि किस तरह की बातें होने लगी कि एक स्टेट दूसरे स्टेट को किस ढंग से अलाउ करेगा, नहीं करेगा। कॉम्प्लेक्सेस ने कर लिया है, घरों ने कर लिया है, कमरों ने कर लिया, और इंडिविजुअल्स ने एक दूसरे को कर लिया। इस तरह की डिवीजन है। अमीड ऑल दिस आज हम लोग एक फैमिली जैसे इस्टेब्लिशमेंट को लेकर चल रहे हैं। तो जस्ट मैं आपको कुछ पिक्चर दे रहा हूं, और एक बायोलॉजी 2040-45 के बारे में, अगर आप लोगों ने कुछ सुपर इंटेलिजेंस टाइप के कॉन्सेप्ट्स के बारे में सुना होगा कि ह्यूमन की जनरल लेवल इंटेलिजेंस को भी बीट कर दिया जाएगा, और मशीनें सेल्फ थिंकिंग के लिए कैपेबल हो जाएंगी। मतलब उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करने की बजाय आपको बोलूंगा सुपर इंटेलिजेंस बोलकर, एक बुक है उसको जरा जरूर पढ़ लीजिएगा। और एक बायोलॉजिकल के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग एक कॉन्सेप्ट आने लगी, डेथ ऑफ डेथ, कि जेनेटिकली इतने तरह के मॉडिफिकेशन हो जाएंगे कि मरना एक ऑप्शनल हो जाएगा। आई मीन इट माइट साउंड थ्योरेटिकल, बट फिर भी हम लोग देख रहे हैं किस तरह से पिछले 30-40-50 सालों में आदमी की एवरेज एज बढ़ती चली जा रही है। ऑल्दो यूएस वगैरह में स्टेगनेट हो गई है क्योंकि उनकी फूड हैबिट्स वगैरह बहुत खराब हो गई है, बट आई थिंक नाउ दे हैव बिकम वेरी अवेयर, तो वहां भी अगेन चेंजेस आ जाएंगे। एंड फैमिली एस्टेब्लिशमेंट में इसके इम्प्लीकेशन कितने अमेजिंग हो सकते हैं, जरा सोचिए कि अगर 3 जनरेशन, 4 जनरेशन, 5 जनरेशन, 6 जनरेशन, 7 जनरेशन एक साथ हो, what will happen? I mean, just think of it. And as human beings, probably death becomes optional. इसके क्या implication होंगे? क्योंकि समय तो देखिए हमारे पास बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी, इसके बारे में भी मैं आगे बात करूंगा, तो चलिए आगे देखते हैं। और देखिए एक और मजेदार जो इन सारी चीजों के बीच हो रहा है, इस ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग इमेज है ये, जरा इसको ध्यान से देखिए कि हजारों लाखों साल लगे। जीतू जी आप लोग सब देख पा रहे हैं ना? एवरीथिंग इज क्लियर एंड एवरीथिंग इज ऑडिबल? आई जस्ट वांट टू मेक श्योर, ऑल्दो इट लुक्स लाइक दैट ओनली। जीतू जी एवरीथिंग फाइन? Yeah, it's clear. Sayesh, please continue. हाँ,
दूर रहने से क्या है, थोड़ी एक स्पीकर को एक नोड की दरकार पड़ती है, हुंकार की दरकार पड़ती है, और नहीं मिलने से थोड़ी वी आर गेटिंग यूज्ड टू talking to a muted screen actually, although I have gradually started feeling as if the audience is sitting in front of me. But yes, it takes time to get accustomed to all of these things, but we need to and we must get accustomed to anyway. But so आप जरा इसको ध्यान से देखिए कि हजारों लाखों साल में आदमी एक बंदर से आदमी बना, उसके बाद एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन आई जो एक बिगर स्पाइरल है, और उसको एक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स का पीरियड मिला। उसके बाद में सैकड़ों सालों की पीरियड इंडस्ट्रियल, 1700-1800 के बीच की घटनाएं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वाली, और 200-400 सालों से चल रही है। 80s में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना आया, और उसके बाद में हम देख रहे हैं वो डिकेड्स में हो रहा है। अब क्या इंटरेस्टिंग फेनोमेना यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं, ग्रेजुअली वर्ल्ड की जो भी प्री डोमिनेंट एक जो चीज होती है, फैक्टर होता है, उसकी जो सक्सेस लाइफ है वो रिड्यूस होती चली जा रही है, वो रिड्यूस होती चली जा रही है। और इसका मतलब एक कंप्रेशन हो रहा है, कि इनवर्ड कंप्रेशन हो रहा है। जो मेथोडोलॉजी आपको आज की डेट में लग रहा है कि इसको मैंने मास्टर कर लिया है और ये आने वाली टाइम में मेरे लिए सक्सेस का एक बहुत बड़ा रास्ता बनने वाली है, तो आप मानकर चलिए कि उसकी सक्सेस की पीरियड बहुत शॉर्ट रहेगी। आपको जो एनकेसमेंट करना है उसको फटाफट कर लेने का है। आई मीन these are certain amazing things which are happening। और एक जो मैं बहुत दिनों से ऑब्जर्व कर रहा था एक दूसरे फेनोमेना को, अनफॉर्चुनेटली हम लोग एक ऐसी दुनिया को क्रिएट कर रहे हैं जो एक नॉकआउट टूर्नामेंट की तरह है। बहुत मैं एक हार्श रियलिटी आपके सामने में प्रेजेंट कर रहा हूं, क्योंकि हम लोग सब एक बदगुमानी में चले गए थे, एंड प्रोबेबली ये जो एक डिस्रप्शन हुआ है ना, इसने हर आदमी को एक थोड़ा सा मोडेस्ट बना दिया है, और इन बातों को रियलाइज वो करा रही है कि अल्टीमेटली हम लोग सब एक कोलैबोरेटिव मॉडल में ही सस्टेन कर पाएंगे। एक विन लूज या आई टेक इट ऑल ये माइंडसेट से काम नहीं चलने वाला है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज कि अभी तक क्या लग रहा था कि हम में से जो भी आगे बढ़ता जा रहा था उसको लग रहा था कि बस मेरे लिए तो आगे की दुनिया पूरी खुली हुई है, लेकिन ये एक नॉकआउट टूर्नामेंट की तरह ही था कि आपने एक लेवल क्रॉस किया, दूसरा किया, तीसरे पे आप बैठे हुए हैं, लेकिन आपको आगे में जाकर अगेन हार जाना है। मतलब मैं ये इस फिनोमिना को मैंने बहुत डीपली जब स्टडी किया तो पा रहा हूं कि फाइनली 1 और 2, 3 और 4 मतलब एक सेमीफाइनल लेवल्स तक की अगर हम लोग विनर बोले तो पूरी दुनिया में अभी आप देखें अगर, तो एक तो चाइनीज, एंड सेकेंडली हम लोग सोचते थे कि रिलायंस शायद इंडिया में वो कंपनी है जो उस कैटेगरी में स्टैंड करती है कि अगर ये जो टॉप 1, 2, 3 विनर्स होने वाले हैं तो रिलायंस उनमें से एक होगा। एंड वी ऑल प्रेड फॉर सम रीजन जब जियो वगैरह जैसी कंपनी आई, क्योंकि डेटा ओनरशिप विद इन कंट्री का में रहना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। कंसिडरिंग दैट हम लोग सोच रहे थे कि चलो अच्छा है कि कम से कम एक कंपनी इंडिया की आगे बढ़ रही है जो यहाँ की डेटा को विद इन कंट्री पूरी रख पाएगी। लेकिन देखिए अभी क्या हुआ, अभी फेसबुक उसमें घुस गया है। तो अल्टीमेटली ये जो टॉप में 2-4 विनर जो रहने वाले हैं, हम और आप कोई भी इसमें नहीं बचा हुआ है। हर आदमी वल्नरेबल है। कोई ये जो ऊपर में या तो चाइनीज कंपनीज या ये जो डेटा ड्रिवन जो यूएस की जो 3-4-5 कंपनियां हैं, अगर सारी दुनिया में इन्हीं को विनर रहना है तो फिर हम क्या करेंगे? फैमिली बिजनेसेस क्या करेंगे? फिर कैसे सब सर्वाइव करेंगे? तो उसमें जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो क्रिएट करना पड़ेगा, आपस में मिलकर काम करना पड़ेगा, थोड़ा ट्रस्ट लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। इसको एकदम बिल्कुल ध्यान रखने की बात है। और देखिए मैं हमेशा बोला करता हूं कि बिजनेस की दुनिया जो है ना वो एक शतरंज के खेल की तरह है, जिसमें अचानक से जो ऑर्गेनाइजर है या नेचर है या जो भी कुछ फोर्सेज है वो आकर कुछ ऐसा बोल देती हैं कि चलो रूल बदल गया है। अभी तक ऊंट तिरछा चलता था वो सीधा चलेगा, हाथी सीधा चलता था वो घोड़े की तरह चलेगा, घोड़ा ऊंट की तरह चलेगा, और राजा जो है रानी बन जाएगा, रानी राजा बन जाएगा। अभी अचानक अब आप एक विनिंग पोजीशन लेके बैठे हैं और कोई आकर आपको डिसरप्ट कर देता है, बोलता है रूल बदल। मतलब अभी की दुनिया को देखकर हम लोगों को कुछ ऐसा नहीं लगता है कि ये जो दुनिया हम किसके साथ शतरंज खेल रहे हैं। सामने में टेक्नोलॉजी, अरे भाई रूल बदले तो हम ह्यूमन बीइंग को तो उसको एडजस्ट करने में बहुत टाइम लगेगा, और यहाँ पर ये कंप्यूटर है, सामने में टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी को मास्टर किए हुए लोग बैठे हैं। हम उनसे आज अमेजन के सामने में एक ब्रिक एंड मोर्टर स्टोर लिया हुआ कैसे कम्पीट करेगा? इट इज दैट काइंड ऑफ सिनेरियो। और फैमिली बिजनेसेस तो जनरली इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, जो एक ट्रेडिशनली जो करते चले आए हैं वो हजार वर्षों सालों से, सैकड़ों सालों से जो करते चले आए हैं। वी आर फेसिंग दिस काइंड ऑफ वर्ल्ड जहाँ रूल बदल रहा है और सामने का ओपोनेंट जो है
वो टेक्नोलॉजी लेके बैठा है जो फास्ट अडेप्ट कर सकता है, चीजों को चेंज कर सकता है। कुछ ये बुक्स की मैं टाइटल आपसे शेयर कर रहा हूं, मैं आपको एक फ्लेवर दे रहा हूं चेंज का। सबसे पहले, ठीक है, ह्यूमंस नीड नॉट अप्लाई, ये बुक है, काफी फेमस हुई है। इस तरह के एडवर्टीजमेंट पब्लिश होंगे क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कंपनियां डिफरेंट कॉम्पिटेंसीज के रोबोट वगैरह बनाएगी और आदमियों के लिए जॉब्स बने या ना बने, फिर वो टेंडरिंग जो होगी वो रोबोट्स के लिए होगी और उसमें साफ साफ लिखा रहेगा ह्यूमंस नीड नॉट अप्लाई। या द एपिसोडिक करियर, इसका मतलब क्या हो गया कि हर 10 साल बाद, जो हम लोग अभी फील कर रहे हैं, आज की डेट में हम लोग सब स्टूडेंट बन गए हैं। पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि हिंदू शास्त्रों के हिसाब से लाइफ के 4 डिवीजन थे। एक था ये ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और संन्यास। और अभी ऐसा हो गया है जैसे एजुकेशन तो जैसे लाइफ लॉन्ग ही हो गया है। तो जो जो ब्रह्मचर्य के लिए जो रिस्ट्रिक्टेड था कि भाई 25 साल 20 साल तक पढ़ाई लिखाई कर लो, उसके बाद पैसे जैसे कमाओ, फिर सामाजिक सेवा करो और उसके बाद में संन्यास। आई थिंक ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू गो टुगेदर, क्योंकि आज स्पिरिचुअलिटी की नीड भी, अभी कल जिनेश भाई ने मेरे को बोला था कि इस सेशन के साथ राजेश भाई कुछ स्पिरिचुअलिटी का भी कुछ करते हैं, संभव वो वर्कआउट नहीं हुआ। नहीं तो अब तो ऐसा हो गया, जो बैलेंस ऑफ लाइफ वगैरह की बातें होने लगी हैं कि चारों आश्रम मिक्सअप हो गए हैं, आपको पता ही नहीं है। मतलब हर 10 साल में हमें एक पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, एक री इन्वेंट करना पड़ेगा, हमें अपने आप को तैयार, जो जो ऐसा नहीं कर पाएंगे ना। कल मेरी एक सुलझे हुए व्यक्ति से, जो बहुत बड़े एक लीडर और बहुत बड़े बिजनेसमैन, उनसे बातचीत हो रही थी, तो कोई बात पर हम लोग बहुत मॉडेस्टली एक दूसरे को कम्युनिकेट कर रहे थे कि मैंने आपसे सीखा है, मैंने आपसे सीखा है। फिर उन्होंने बोले नहीं आप मेरे गुरु हैं, मैंने बोला नहीं आप मेरे गुरु हैं। फिर फाइनली हमने ये कंक्लूड किया कि जो सबसे अच्छा स्टूडेंट होता है वही सबसे अच्छा गुरु होता है। I mean, and I can tell you with full sense of ownership कि जब मैं किसी प्रोग्राम में बैठता हूं तो शायद सबसे ज्यादा मैं एब्जॉर्ब करने की ट्राई करता हूं, सबसे ज्यादा मैं नोट करता हूं, क्योंकि ये फीचर आप खो ही नहीं सकते हो। और यहां तक बात होने लगी है कि आने वाले टाइम में जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी बिजनेसेस, जो इमर्जिंग बिजनेसेस होने वाली हैं, उसमें एजुकेशन नंबर 1 रहने वाला है। क्योंकि उसके पीछे रीजन बहुत साफ है। लोग ये रियलाइज करने लगे हैं कि ये जो प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम है ये एकदम फालतू हो गया है। आप 4 साल के लिए सीनियर लेवल पे कोई एक्सपर्टाइज गेन करने के लिए 48 मंथ्स के लिए जाते हो, तो 48 मंथ्स के लिए जब आप जाते हो, अभी बोल रहे हैं कि 1 into 48, कि हर साल 1 महीने एजुकेशन के लिए 48 ईयर्स तक। I mean, this might sound a bit extreme. It may not replace that 48-month curriculum, but it definitely makes sense for all of us कि हम लोग अपनी जिंदगी में वो एक नई एक मेथड को हम लोग अडॉप्ट करें। आवर फाइनल इन्वेंशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, इनइक्वलिटी को लेकर है, पीपल वर्सेस टेक, द गॉड एआई, इस तरह की मैंने बुक्स की कुछ टाइटल आपके सामने थ्रो की है। अब इसमें क्या है कि मैं क्या बात करूं, निगेटिव बात बोल रहा हूं कि पॉजिटिव बोल रहा हूं कि क्या बोल रहा हूं, ये एक बड़ा एक डिबेट का सब्जेक्ट रहता है। लोग बोलते हैं भाई पॉजिटिव बात करो, खाली पॉजिटिव बात करो। आपने वो जोक सुना हुआ, एक मूवी थी ना, बी पॉजिटिव, व्हाट इज दैट वन, दैट्स माय बी ब्लड ग्रुप। तो कई लोग ये लड़ते रहते हैं कि ग्लास जो है वो आधा खाली है, ग्लास आधा भरा हुआ है, पर अपनी दुनिया का काम तो इस बात से चलता है कि आधा खाली हो या भरा हो, पानी पीना है। व्हाट दैट मीन्स कि हम लोग को प्रैग्मेटिज्म की तरफ जाना पड़ेगा और फॉल्स होप में नहीं रहना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ आप निगेटिव मत बनिए, लेकिन आप फॉल्स होप में भी, मैं आगे बात करूंगा किस तरह की अपॉर्चुनिटी सामने में आ रही है और फैमिली बिजनेस के लिए पर्टिकुलरली क्या अपॉर्चुनिटी आने आ रही है। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट का फंडामेंटल ये बोलता है कि आप वर्स्ट केस सिनारियो के हिसाब से बात करिए। रिस्क मैनेजमेंट हमेशा वर्स्ट केस सिनारियो को देखकर होता है और प्लानिंग जो होती है वो फिर बेस्ट केस के लिए होती है। तो दूसरी बात ये हो जाती है कि अगर आप बिजनेस एज यूजुअल सोच रहे हो तो आप एक तरह से एस्केलेटर के ऊपर में उल्टे खड़े हुए हो। जस्ट विजुअलाइज दैट सिनारियो कि आप एस्केलेटर के ऊपर में उल्टे खड़े हो गए हो। आपको सेम जगह रहने के लिए भी चलना पड़ेगा और आगे बढ़ने के लिए तो आपको दौड़ना पड़ेगा। ये एक सिचुएशन हम लोग फेस कर रहे हैं, क्योंकि राइट डायरेक्शन जो है आपको चलना तो उसी में पड़ेगा। आप रॉन्ग डायरेक्शन में बहुत तेज चलोगे तो और गड्ढे में गिर जाओगे। सो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स दैट आई एम टॉकिंग। जस्ट एंजॉय दीज इमेजेस कि हम लोग कितने ऑफ गार्ड हैं, मतलब वी हैव बीन कॉट सो ऑफ गार्ड कि या पानी के पास में जाकर मजे ले रहे हैं, अपने को गर्दन तक हम लोगों ने उसमें दाब रखा और सामने से वेव आ रही है। अब मुसीबतों को क्या जाएंगे, वो हमारे पास आ रही हैं और ये चल रहा है सिलसिला। इस संदर्भ में मुझे
कारगिल जो एक कंपनी है, वर्ल्ड की बिगेस्ट क्लोजली हेल्ड कंपनी है ये इन्होंने पब्लिक इशू वगैरह नहीं लाया है। इनकी कुछ प्रैक्टिसेस मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। यहाँ पर कुछ चेट्स वगैरह, क्वेश्चंस आई टेक, जीतू जी आई रिक्वेस्ट यू, क्वेश्चंस आप कुछ जमा कर लीजिएगा, मैं लास्ट में ले लूंगा, ठीक है? लेट मी फिनिश yes. दिस प्रेजेंटेशन, ओके? कारगिल की बेस्ट प्रैक्टिस मैं आपसे एक शेयर करता हूँ। ये क्या करते हैं, हर 2-3 साल के बाद में वर्ल्ड के बेस्ट कंसल्टेंट को जमा करते हैं। क्या चीज के लिए? सिर्फ ये बताने के लिए कि हमारे कल्चर में किस तरह के ऐसे एजम्पशंस जमा हो गए हैं जो अब रिडंडेंट हो गए। अब देखिए कल्चर की डेफिनेशन क्या है। कल्चर की सबसे बड़ी डेफिनेशन है द वे वी डू थिंग्स हियर, हम किस तरह से यहाँ पर काम करते हैं। और ये इतना डीपली इनग्रेन्ड हो जाता है कि उसको फिर चेंज करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, अनलेस कि आप डिलिबरेट कोई डिसरप्शन उसमें नहीं क्रिएट करो। मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है? मैनेजमेंट, अगर कोई चीज हम लोग बोल देते गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो में पानी का नेचर क्या होता है? पानी का नेचर तो इट टेंड्स टू गो डाउनवर्ड। अगर आप लॉ ऑफ एंट्रोपी को देखेंगे कि गर्म चाय को रख दीजिए तो ठंडी हो जाती है, ठंडे कोल्ड ड्रिंक को रख दीजिए तो गर्म हो जाता है। कपड़े हैं, रात में जो है धूल जमती रहती है, पेट खाली होते रहते हैं। नेचर का जो लॉ है वो डिटेरियोरेशन की तरफ है, पानी का जो नेचर है वो नीचे गिरने की तरफ है। पानी को ऊपर चढ़ाना है तो मोटर लगाना पड़ेगा, तो उसमें डेलिबरेट कॉन्शियस एफर्ट लगता है, वही मैनेजमेंट है। जब तक आप इस मोड में नहीं आएंगे, मतलब खुद को डिसरप्ट कर, अगर डिसरप्शन से बचना है तो डिसरप्ट करना पड़ेगा। और उसके लिए कारगिल यही करती है कि वर्ल्ड के बेस्ट कंसल्टेंट्स वगैरह को बुलाती है और वो चेक कराती है कि हमारे, और ये जो मौका आया है ना, आप लोगों को मैं स्पेशली बोलना चाहूंगा, अभी जब आप जो कुछ भी दिन है अभी आपके हाथ में, इन चीजों को जरूर देखिए कि जिस ढंग से आप बिजनेस करते थे, जो आपका वे ऑफ पास्ट रहा है, जो कल्चर रहा है, उसके कौन कौन से एलिमेंट आपके अब इररिलेवेंट हो गए, रिडंडेंट हो गए, जिनको आपको चेंज करना पड़ेगा। ये बहुत नेसेसरी है। कुछ चीजें मैं बता दूं व्हाट नॉट टू डू, कि क्या नहीं करना चाहिए, ये बड़ा जरूरी है। देखिए क्या होता है, क्या करना चाहिए तो बहुत लंबा एजेंडा है, और क्या नहीं करना चाहिए सिर्फ नॉलेज का मैटर है। जान लेंगे तो काम हो जाता है, अवेयरनेस में बहुत बड़ी ताकत होती है। तो इसलिए सिर्फ मैं चाह रहा था कि कुछ बातें आपको ऐसे ही बोलूं जो सिर्फ आप जान, एक तो बोरो करना मतलब बहुत टेम्पटेशन हो जाएगा, आप इतनी टफ पीरियड से जाने वाले हो, जहां तक हो बोरो करने को लास्ट ऑप्शन में फेंक दीजिएगा। आप सरकार से लड़कर क्या ले सकते हैं, किसी और से क्या लड़कर ले सकते हैं, करिए, कलेक्टिव बार्गेनिंग करिए। बिजनेस को लेकर मैं बहुत फ्रेंकली बोलना चाहूंगा, मेरे को कभी कभी ऐसा फील होने लगा है कि शायद इस कंट्री ने हमेशा बिजनेसमैन को समझा ही नहीं है, एक्चुअली एंटरप्रेन्योर्स को समझा ही नहीं है। हमारी पुरानी फिल्मों में विलेन की तरह तो प्रोजेक्ट किया जाता, वो जीवन आपको याद होगा, एक कैरेक्टर आया करता था, और एक टिपिकल जो बनिए को जो है हमेशा से इस ढंग से डिपिक्ट किया गया। और वो एक, आज भी आपने देखा कुछ घटनाएं घट जाती हैं, लोग एक ओपिनियन लेके बैठ जाते हैं, किसी को नहीं पता है कि सबसे वल्नरेबल क्लास जो है वो एंटरप्रेन्योर है। और अगर, और फैमिली बिजनेसेस तो खासकर, कि कितने लोगों का घर चलता है और कितने लोगों का घर वो चलाते हैं और वैल्यू बेस्ड काम करते हैं, इज्जत प्रतिष्ठा के लिए काम करते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट के लिए काम नहीं करते हैं, बोनस के लिए काम नहीं करते हैं, अपनी पूरी जिंदगी की जमा कमाई को झोंक देते हैं अपनी इज्जत बचाने के लिए। और पूरी वर्ल्ड में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयमेंट के मामले में अगर किसी का रहता है तो वो फैमिली बिजनेस का रहता है। और गवर्नमेंट को इस बात को समझने की बहुत बड़ी आवश्यकता है, स्पेशल एंगल से देखना पड़ेगा कि हाउ डू वी प्रोटेक्ट आवर फैमिली बिजनेसेस। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो आज फैमिली बिजनेस के बच्चे जॉब गिवर बनते थे, जो साथ में ज्वाइन करते थे, धीरे धीरे लॉ वगैरह इतने स्ट्रिंजेंट आ गए, इस ढंग का ट्रीटमेंट बिहेवियर मिलने लगा कि वो भी विमुख होते जा रहे हैं। आज एक बच्चा जब ये डिसीजन लेता है कि वो जॉब के लिए नहीं जाएगा, एंटरप्रेन्योर बनेगा, देश को एक कम आदमी के लिए नौकरी खोजनी पड़ती है। और ये भी एक रिकॉर्ड है कि स्मॉल बिजनेसेस, जो नए बिजनेसेस है, जो 5-7 साल के अंदर में हाईएस्ट जॉब वही क्रिएट करते हैं, नए एम्प्लॉयमेंट वही क्रिएट करते हैं। तो आज अगर ये विमुक्ता हो गई, अगर फैमिली बिजनेस को स्टेटमेंटली ट्रीटमेंट मिलता रहा, इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता है कि अगर जॉब की सिचुएशन अगर गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो उनको आंख मीच कर सिर्फ एक ही सेक्टर को देखना पड़ेगा टू प्रोटेक्ट द फैमिली बिजनेसेस। तो ये बहुत जरूरी है। तो लड़िए, आप लड़ सकते हैं और हम लोग सब साथ हैं। एक बैड इंटेंशन, कभी कभी क्या हो जाता है कि ये आपको जब लग रहा है कि सारी दुनिया डिफॉल्टर है तो आपको बहाने दिखने लगेंगे बड़े इजी से, तो उसको हम लोग अवेल कर लेते हैं। बैड इंटेंशन मत रखिए।
आप देना है, मेरे को लौटाना है, किसी से आपको लौटाना, उसका मन बना के रखिए, क्योंकि अभी जो आप रेपुटेशन प्रेस्टीज को बचा लेंगे यही आपके काम आएगा। आगे आपके तो अपने हेल्थ को देखिए, अपनी रेपुटेशन को देखिए, प्रेस्टीज को देखिए, और ट्रस्ट डेफिसिट बहुत बड़ी होने वाली है, उसके ऊपर में चलकर काम करिए। मिरेकल्स के चक्कर में मत फंसिएगा, क्योंकि जब आदमी प्रेशर में रहता है, बहुत से लोग बहुत स्कीम लेके, देखिए क्या हो गया फाइनेंशियल सेक्टर की पूरी दुनिया इस ढंग से काम करती है, उनका एक ही काम है कि कोई फोटो दिखानी है और पैसे निकालने हैं। जिसको भी पता चलेगा आप में किसी के पास कोई लिक्विडिटी है, आप देखिएगा कि लोग पहुंच जाएंगे आपके पास में। बहुत सावधान रहिएगा, अभी एक एक पैसे को बचा कर रहिएगा, रखिएगा। जल्दी से किसी चक्कर में, किसी झांसे में मत पड़िएगा। आपको पुराना भी रिसेंटली याद ही होगा, NSEL वगैरह जैसे केस हुए हैं, जिन लोगों ने ऐसा किया था, बहुत याद करने की चेष्टा करिएगा कि कहीं पर उन्होंने अपनी कमीशन, अपनी इंटरेस्ट को ज्यादा देखा था आपसे। इसको भूलिएगा मत। मैं ये नहीं कहता कि लोग बदलते नहीं है, लेकिन जो आग से आपने हाथ जलाई है उससे सावधान जरूर रहिएगा, अपने पैसे को बहुत अच्छे से बचा कर रहिएगा। और दूसरी बात, कभी कभी ये मन में आएगा, हम लोग जैसे कंसल्टेंट भी शायद ये बोलेंगे आपको कि जो आगे ग्रो करने वाले हैं वो टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड लोग ही करने वाले हैं। तो उस हालत में बहुत से लोग टेक्नोलॉजी के बिजनेस का जब प्रपोजल लेके आए, तो बिजनेस में जल्दी से हैंड ज्वाइन मत करिएगा, पार्टनरशिप में मत घुसने का ट्राई करिएगा। इन्वेस्टर बनिएगा, पार्टनरशिप में तभी बनिए, अपने बच्चों के लिए बनिएगा, उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा आप लोगों के साथ। अब देखिए, मैंने इतनी सारी बातें की जहां डिसरप्शन, चेंज वगैरह की बात कर रहा हूं। अब ये कोट को आप पढ़िए कि फैमिली बिजनेस और क्या है। मतलब मैं आप लोगों को नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं कि आप कितनी कॉम्प्लेक्स जिंदगी को जीते हो और कितने बढ़िया से मैनेज करते हो। फैमिली बिजनेस इज ए यूनिक कॉम्बिनेशन, ओके, इट्स ए यूनिक कॉम्बिनेशन of two diverse systems, family and business. Family requires stability. Family एक ठहराव है. Business demands change. Family fosters equality. सब भाई बराबर बराबर है. Business needs to promote competence. उसकी आवश्यकता है, क्योंकि जो अच्छा करेगा उसको ज्यादा रिवॉर्ड देना पड़ेगा, नहीं तो लोग परफॉर्म करना छोड़ देंगे। अरे घोड़ा जो है ना, उसको देखकर गधा घोड़ा बने ना बने, गधा जब दिन भर वैसा ही रहेगा तो फिर गधे को भी, घोड़े को भी वही हो जाता है कि यार मैं ही गधा बन जाऊं, क्योंकि रिवॉर्ड अगर सबको इक्वल करेंगे तो यही होगा। Family is an emotion-based system and business works on rationality. Now, amid all this, ये है फैमिली बिजनेस की स्टोरी कि आप उसमें रन कर रहे हो। अब ये बाहर की दुनिया का इतना कॉम्प्लेक्स, इतना फास्ट डिसरप्टिव चेंजेस, उसके बीच में एक स्टेबल सिस्टम मिसमैच है। तो आपको इसको नेविगेट करना है कि जब आप घर आ रहे हैं तो आपकी दुनिया एक अलग है, जब आप ऑफिस जा रहे हैं तो आपकी दुनिया एक अलग है। तो इस फैक्टर को ध्यान में रख के आपको जीना है। मैं दोनों की लैंग्वेज भी दिखा रहा हूँ आपको। फैमिली की लैंग्वेज होती है डिवाइड द केक, इक्वलिटी अमंग्स द सिबलिंग्स। बिजनेस की लैंग्वेज है गिव द मोस्ट कॉम्पिटेंट वन द लार्जेस्ट पीस, डोंट जज योर चिल्ड्रन। वहां होता है इवेल्युएट परफॉर्मेंस, सेल्फलेस लव, किलर इंस्टिंक्ट, डॉग इट डॉग कॉम्पिटिशन, फॉलो द ट्रेडिशन, संस्कार की बात है, परंपरा की बात है, जड़ों की बात है। बिजनेस में है एम्ब्रेस चेंज, उड़ान भरो, नई नई चीजों को लेके आओ। फादर कहता है घर में रिस्पेक्ट मी, मैं तुम्हारा फादर हूँ, मेरी इज्जत करो। जब ऑफिस पहुंचते हैं तो बेटा कहता है कि मैं आपका कलीग हूँ, आप मेरे से बात करके, मेरे से सलाह करके, मेरे से राय मशवरा करके काम करिए। फैमिली में लाइफ लॉन्ग मेंबरशिप है, बिजनेस में हायर एंड फायर है। इन सब के बीच में रहना है और इनको नेविगेट करना है। जो सबसे बड़ी जरूरत है कि कैसे हम करें। अब इसके बीच में मैं आपसे एक इंटरेस्टिंग मैंने एक इंटरव्यू लिया था आज के 12-14 साल हो गए। मिस्टर आदि गोदरेज का मैंने एक इंटरव्यू लिया था, उसके 10 साल बाद अभी 3-4 साल पहले फिर लिया था। उन्होंने कुछ बात बोली थी। उनका कहना था कि मेरी कंपनी जो है ना गोदरेज, ये बूढ़ी औरत की तरह हो गई है। आपको याद होगा पहले गोदरेज का जो लोगो हुआ करता था वो ब्लैक एंड व्हाइट स्टेल, एक स्ट्रॉन्ग कलर का, सिंगल कलर का एक लोगो हुआ करता था। एंड ही टोल्ड कि हमारा कल्चर इतना रिजिड हो गया है, डिसीजन मेकिंग इतनी स्लो हो गई है, रिस्क टेकिंग की एटीट्यूड एकदम खत्म हो गई है, लेथार्जी आ गई है पूरे सिस्टम में, एंड मैं इसको री एनर्जाइज करना चाहता हूं। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, बताइए आप क्या क्या कर रहे हैं, व्हाट आर सम ऑफ द प्रैक्टिसेस दैट यू आर अडॉप्टिंग। देन ही शेयर्ड विद मी 2-3 थिंग्स जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, जो आप में से काफी लोगों के लिए रिलेवेंट होगा, और आगे भी वो एक दूसरे एंगल से भी मैं बात करूंगा। सबसे बड़ी बात उन्होंने बोली कि अभी हम लोगों ने हमारी कंपनी में तो कई यंगस्टर भी हैं, तो हमने एक पैरेलल बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स ऑफ यंगस्टर क्रिएट कर दिया है। उनका काम क्या है कि जब मैं कोई बड़ी इशू पे, जब हमारा फॉर्मल बोर्ड डिलिब्रेट करता रहता है तो वो इशू हम उनको भी दे देते हैं। उनकी कोई फॉर्मल लीगल स्टैंडिंग नहीं है, वो अपने डिसीजन को फोर्स नहीं कर सकते हैं कंपनी में, सिर्फ एडवाइजरी रोल के ऊपर में है, बट समटाइम्स दे कम अप विद वंडरफुल आइडियाज।
So this is one thing he told, and second he told that at personal level I am going for reverse mentoring. हम लोग जनरली मेंटरशिप को देखते हैं कि ये टॉप डाउन कोई चीज है कि हम लोग सीनियर है, नीचे में जूनियर है और सीनियर जूनियर को मेंटर करता है। उन्होंने कहा कि एंड आई एग्री विथ हिम, दिस इज माय पर्सनल फीलिंग आल्सो, कि देखा जाए तो धरती पर ज्ञान को अगर हम बांटे तो दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जो 2000-3000 साल पहले जो हमारे स्क्रिप्चर जो थे ना, प्योर फिलोसॉफिकल, जब उसमें रिचुअल का वो मिलावट नहीं हुई थी, उसमें वो पॉल्यूशन नहीं घुसा था, ऋग्वेद वगैरह के लेवल पे जब आप देखेंगे ना तो उसकी जो गहराई मिलेगी आपको, एक तो वो बातें जिनमें रियल में तत्व है, सार है वहां पर, और सेकेंडली या फिर फ्यूचर जनरेशन के साथ। क्योंकि आपको रहना कहाँ है, आपको रहना तो फ्यूचर के वर्ल्ड में। अनफॉर्चुनेटली जब चेंज की बात आती है ना, तो जब दो ऑप्शन मिलते हैं, एक प्योरिफिकेशन का और दूसरा रिफॉर्म का, हर लोग टेम्प्ट हो जाते हैं प्योरिफिकेशन की तरफ। 2000 साल पहले ये बात बोली, 500 साल पहले इसमें ये लिखा हुआ था, हम लोग उसको मानने के लिए चले जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारे जो पॉपुलेशन है इस कंट्री की वो यंग है, हमें आगे की तरफ देखना चाहिए, फ्यूचर जनरेशन की तरफ देखना चाहिए, और ऐसे भी जो टेक्नोलॉजी के चेंज आ रहे हैं उसको हम अडेप्ट कैसे करेंगे अगर हम फ्यूचर के हिसाब से नहीं चलते। तो उन्होंने रिवर्स मेंटरिंग की बात बोली कि मेरे को यंग जनरेशन के साथ रहने से मैं हमेशा कंटेम्प्रेरी रहता हूं, मेरे को पता चलता है कि फ्यूचर का डायरेक्शन किधर जा रहा है। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको कुछ बातें फैमिली में क्या हुआ है, हमारी व्यक्तिगत लाइफ में क्या हुआ है, उसको लेकर बात करूंगा। ये मैं पिक्चर आपसे शेयर कर रहा हूं, आपको पूरी स्क्रीन दिख रही है? जीतू जी एक दो जन का ऑन कर लीजिए या आप अपना ही ऑन कर लीजिए। आर यू देयर? यस 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 प्लीज। आप देखिए कि 1958 में भी उन्होंने ये इमेजिन कर लिया था कि आने वाली दुनिया कैसे होने वाली है। ठीक है, उन्होंने कर लिया था इसको इमेजिन। अब इसमें आपको क्या गड़बड़ दिख रही है? मेरे को बहुत डिस्टर्ब करती है ये फोटो। जीतू जी चलिए मैं ही बोलता हूँ, आप कुछ बोलेंगे तो बोल दीजिए, नहीं तो नहीं, the participant can answer in their chat box. हाँ Please, you can write your answer in your chat box so that you see we can take this discussion forward. But yes, I am yet to see what is the problem in this. नहीं, ड्राइवरलेस कार लिख के आया है, सेल्फ ड्राइविंग कार आया है, नो वन इज ड्राइविंग आया है, ड्राइविंग इन कॉन्फ्लिक्ट डायरेक्शन आया है। ठीक है, चलिए मैं रुक जाता हूँ। आपने वो नहीं देखा जो आपको देख लेना चाहिए था। इन्होंने कल्पना बड़ी अच्छी की थी, पर इन्होंने मोबाइल फोन की कल्पना नहीं की थी कि ये लोग इस तरह से गेम खेलते हुए नहीं रहेंगे, सब अपनी अपनी दुनिया में चले जाएंगे। मतलब फैमिली वाले इस चीज का फायदा लेंगे या डिवाइडर हो जाएंगे, इस चीज की कल्पना उन्होंने नहीं की थी। हम आदमी जो है ना, इंसान जो है ना, बड़ा एक अजीब चीज है। आप सोचिए कि इतनी बड़ी ऑटोमेशन पिछले 50-60 सालों में, और इस 50-60 साल में अगर हमने वॉशिंग मशीन बना ली, पहले हम 3 दिन में कपड़े बदलते थे, अब 1 दिन में 3 कपड़े बदलेंगे। पहले हम पैदल चल के ऑफिस या वर्क प्लेस में जाया करते थे, जो आसपास कहीं हुआ करता था। हमने मोटर कार बना ली तो वर्क प्लेस को 50 किलोमीटर दूर कर दिया। मतलब समय क्रिएट करके उसको वापस भरने की मास्टरी है हमारी। वो फिर प्रोडक्टिव नहीं होकर कैसा हो जाता है। आज आप सोचिए ना, एक बिल जमा करना है, गवर्नमेंट को टैक्स देने में आपकी हालत खराब हो जाती थी। आज भी आप रजिस्ट्री करने चले जाइए प्रॉपर्टी के मामले में, देखिए कितनी टाइम पैसा देना है सरकार को, और पैसा देने में इतनी परेशानी। और पहले तो खैर टेलीफोन बिल और क्या क्या चीज में कितनी टाइम हम लोग दे दिया करते थे, सारी टाइम तो बचने लगी भाई साहब। लेकिन जाती कहाँ है, वो गई कहाँ है? आपको क्या लगता है कि ऑफिस में प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ गई है? मेरे को ऐसा नहीं लगता। मेरे को लगता है वर्क एथिक काफी कंप्रोमाइज हो गया है। अब हमारा जो प्रोडक्टिव समय है बहुत कम होता जा रहा है, और आने वाली जनरेशन तो बहुत बड़े खतरे में है। देखिए मैं आपसे और शेयर करता हूँ, हमारी फैमिली क्या हो गई है। 1960 की फैमिली, 80 की फैमिली, 2000 की फैमिली और 2020 की फैमिली। ये किताब की टाइटल पढ़िए, एलोन टुगेदर। हम साथ हैं और एलोन है। वंडरफुल टाइटल कि हम लोग एलोन टुगेदर हैं। ये हमारे रिश्तों की गहराइयां हो गई है। रिश्ते हमारे कैसे छितर बितर होते चले जा रहे हैं, कैसे क्या वॉल की बात करेंगे हम। मतलब इतने अच्छे कनेक्ट रहने के मीडियम हमने क्रिएट कर लिए हैं कि आज हम और आप, एक सैकड़ों आदमी, हजारों आदमी इस मीडियम के थ्रू कनेक्टेड है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू फैमिली, आज हम लोग 20 दिन से, 25 दिन से, 50 दिन से हम लोग सब साथ रह रहे हैं। हम लोग साथ तो हैं, कनेक्टेड है क्या? क्योंकि बात हम लोग फैमिली और फैमिली बिजनेस की कर रहे हैं।
बच्चों की हालत देखिए, बचपना खत्म हो गया, सीरियसली बचपना खत्म हो गया। उसके अंदर में वो क्या देख लेते हैं वो आपको पता भी नहीं चलता है, और कितनी जल्दी वो बड़े हो जाते हैं। ये मतलब इसके फिर सोशल इंप्लीकेशंस आप समझ ही सकते हैं कि क्या होते हैं। एक छोटे से डिवाइस के अंदर में हमने क्या क्या नहीं घुसा दिया, पूरा का पूरा मॉल आ गया है। एक मोबाइल फोन के अंदर में हमने सब कुछ डाल दिया। ये फोटोग्राफ आपने काफी देखी होगी, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। अब इस तरह के सिनेरियो में हमारे चैलेंजेस क्या हो गए? हमारे चैलेंजेस हो गए फोकस एंड डेप्थ, सुपरफ्लुअस एग्जिस्टेंस हो गया है हमारा, गहराई की कमी हो गई है, कोई बोर ही नहीं होता है। एक बच्चे की क्रिएटिविटी कहाँ पर आती है? जब एक बच्चा बोर होता है ना, तो थोड़ी देर में वो पेंटिंग ब्रश को उठा लेगा, अपने पियानो के कीबोर्ड के ऊपर अंगुलियां थिरकाने लगेगा, कुछ गाने लगेगा। वो सिचुएशन ही नहीं आती है। ऊपर ऊपर लेवल पे इतने गैजेट्स, इतनी चीजें रहती हैं कि वो फिर बोर नहीं होता है। रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड रिलेशनशिप का अभाव हो गया है। हम लोग एक दूसरे को अनुभव कहाँ करते हैं? क्योंकि ये फैमिली बिजनेस की हमेशा से स्ट्रेंथ रही है। फैमिली बिजनेस को में भी अनुभव देते थे अपने कस्टमर को, और अब इतनी डिस्टेंसिंग हो गई है कि वो जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो था हमारा, उसको हम लूज करते चले जा रहे हैं। कंट्रोल, एक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस जो है वो तो हर का बहुत छोटा होता है, हमारा दायरा जिस पर कि हम प्रभाव डाल सकते हैं, पर हमारा सर्कल ऑफ कंसर्न, ग्वाटेमाला में बाढ़ आ गई, न्यूयॉर्क में कोविड के केस इतने बढ़ गए, वो सब हमारे एरिया ऑफ कंसर्न हो सकते हैं, और हम लोग अपनी जिंदगी और टाइम व्हाट्सएप के ऊपर में इधर उधर भेज के उसके ऊपर में वेस्ट करते रह सकते हैं, और सारा समय जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो सारा का सारा खत्म हो जाता है उसी के अंदर में। सस्टेनिंग सक्सेस हैज बिकम ए बिग चैलेंज। सक्सेस पा लेना तो आसान हो गया, पर मैंने जैसे दिखाया आपको कन्वर्जिंग सर्कल, कि उसके बीच में सफलता को बचा पाना कितना डिफिकल्ट हो गया है। रिमेनिंग रिलेवेंट एंड वैल्यूएबल, ये आप देखिए हिंदुस्तान की अगर हम इतिहास में जाते हैं तो पहले जो यहाँ के राजा थे वो हाथी पे थे, मुगल आए घोड़े पे, तो घोड़े ने हाथी वालों को हरा दिया। फिर ब्रिटिशर्स आए बंदूक लेके, तो उन्होंने बंदूक वालों ने घोड़े वालों को हरा दिया। फिर मास मूवमेंट आ गया, उसने उनको हरा दिया। कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है रहता नहीं है। कोई चीज आज की डेट में हम लोग, जो कोई आदमी सोचे कि मेरे पास तलवार और मैं तलवारबाजी का मास्टर हूँ, सुबह शाम दिन भर उसकी प्रैक्टिस करता है, अपनी तलवार को भी दिन भर तेल पिलाता है, उसको धार बनाकर रखता है, लेकिन सामने से बंदूक वाला आ जाता है तो वो क्या कर पाएगा? और अब तो गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल का जमाना आ गया है, और इवन स्वाम टेक्नोलॉजी आ गई है कि एक मशीन से 500 बुलेट निकलेगी और वो टारगेट के डिस्क्रिप्शन मेंशन रहेंगे और खोज खाज को टारगेट को मार देंगे। No, we are living in that kind of a world, and remaining employed or constructively engaged, that is going to be a big problem. टाइम के बारे में मैंने बताई दी आपको। सोशल हार्मनी का इशू जैसे मैंने बताया कि बहुत कम विनर रहने वाले हैं। देखिए हम लोग ऊपर लेवल पे बात कर रहे हैं कि बहुत कम विनर रहने वाले हैं। आज अब अपने को समझ में आ रहा है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, नहीं तो हार्मनी एकदम खत्म हो जाएगी। जॉब्स वगैरह की जो हालत होने वाली है उसमें फिलेंथ्रोपी वगैरह के एरियाज में सेल्फ चोजन मेथड्स करने पड़ेंगे, नहीं तो फिर वो सिस्टम ड्रिवन आ जाएंगे, विच विल नॉट बी गुड, विच विल नेवर बी गुड। क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप को फोर्स से कोई चलाए और बाद में बोले कि कमाने के बाद तुम्हारा सारा पैसा मेरा है, तो वैसे फिर एंटरप्रेन्योरशिप काम नहीं करती है। देखिए मैं इक्वलिटी के बहुत फेवर में नहीं रहता हूं। मैं इस बात को जानता हूं कि दुनिया सबसे ज्यादा इक्वल आज के 200-500 साल पहले थी। वो कैसे इक्वल थी? 200-500 साल पहले सब गरीब थे, जीरो लेवल पे सब इक्वल होते हैं। तो वैसी इक्वलिटी किस काम की? ये जो मोटिवेशन था कैपिटलिज्म का, जो प्रॉफिट का ये जो ड्राइव थी, इसी ने वर्ल्ड को आगे बढ़ाया। उसमें हमने कुछ अति कर दिया, कंट्रोल उस अति को करने का है। लेकिन आज भी अगर हम रिवार्ड नहीं करेंगे बेस्ट परफॉर्मेंस को, अगर रिस्क टेकर को रिवार्ड नहीं करेंगे, तो सोशलिज्म का एग्जांपल तो हम लोग के पास में है ही है कि वो एक्सपेरिमेंट भी तो फेल ही हो चुका है ना। सो नीड अनब्रिडल्ड कैपिटलिज्म को थोड़ा कंट्रोल करने की है रास्ता। वो सबको एक इक्वल लेवल पे, तो कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होगा? फिर इंडस्ट्री कौन डालेगा? तो ये काम तो होंगे नहीं। पावर का बैलेंस करना पड़ेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने क्या कर दिया है कि बहुत सेंट्रलाइज कर दिया है पावर को, डिसइंटरमीडिएशन हो गया है। टॉप जो है वो सारे कंट्रोल करता है। आप देखेंगे किसी भी कंट्री में आज की डेट में, और कहीं भी किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, सोशल कॉन्टेक्स्ट में भी, जो टॉप लीडर होता है वो एक्सेप्शनली पावरफुल होने लगा है। ये अच्छा भी है, क्योंकि अगर उसके इंटेंट अच्छे हैं तो जिस ढंग के चेंज वो ला सकता है वैसा कोई दूसरा नहीं ला सकता है। लेकिन कभी कभी वो ब्लाइंडिंग भी कर देता है, क्योंकि आज एक आर्गस बोलकर ग्रीक मैथोलॉजी में एक गॉड की कल्पना की गई है जिसकी 1000 आंख थी।
उस तरह का जो पावरफुल अगर कोई लीडर है तो उसको 1000 आंख रखकर एक एक आदमी की पल्स को समझना पड़ेगा। अगर वो फिल्टरिंग होकर इंफॉर्मेशन जाएगी, अगर कोटरी कल्चर आएगा तो वो खराब है। लकीली आई बिलीव कि अभी इस तरह की चीजें शायद कुछ डाइल्यूट हो रही है, बट अभी रिएक्शन की प्रो बहुत दरकार पड़ने लगी। और गवर्नमेंट का कैरेक्टर, जैसे फैमिली बिजनेस का कैरेक्टर ट्रेडिशनल है, स्लो रिएक्ट करने का, वैसे गवर्नमेंट का कैरेक्टर भी स्लो है, प्रोएक्टिव नहीं है, रिएक्टिव है और बहुत स्लो रिएक्शंस आते हैं। और अभी जो है वार मोड में है पूरी दुनिया, और इसमें बहुत फास्ट करेक्शन, और इसलिए 1000 आंखें राइट फीडबैक किया। आई होप वर्क इज गोइंग ऑन, since I don't have full knowledge of that, so I would not like to comment on that. And democracy, freedom and privacy, ये हमारी थ्रेटेंड है, क्योंकि डेटा इतना मैनिपुलेट होने लगा है। आपने कैम्ब्रिज एनालिटिका वगैरह के केस देखे होंगे कि कैसे इलेक्शंस भी मैनिपुलेट हो जाते हैं। चाइना वगैरह में तो प्रिवेसी वगैरह की कोई बात ही नहीं है। तो दीज आर गोइंग टू बी ह्यूज चैलेंजेस। होप, पीस एंड हैप्पीनेस, इनको मैनेज कर पाना, मतलब होपफुल रह पाना, ये अपने आप में चैलेंज हो गया। बट वी ओ इट टू आवरसेल्फ, क्योंकि अगर आपकी होप भी खत्म हो जाएगी तो आप कैसे कोई भी चेंज करके जाओ। देखिए दुनिया में जो ऑप्टिमिस्टिक है ना, अभी मैंने एक मजाक की बात की थी ऑप्टिमिस्टिक पेसिमिस्टिक को लेकर, लेकिन दुनिया में जो ऑप्टिमिस्टिक है, इनोवेशन ऑप्टिमिस्टिक आदमी करता है, वही सॉल्यूशन ड्रिवन होता है। वो प्रॉब्लम में स्टक नहीं होता है, वो दलदल में फंसा हुआ नहीं रहता है। तो होप, पीस और हैप्पीनेस, हैप्पीनेस अल्टीमेट है। सक्सेस की सबसे बड़ी डेफिनेशन ही वही है कि इफ यू आर हैप्पी यू आर सक्सेसफुल। कोई दूसरी डेफिनेशन की दरकार ही नहीं है। फैमिलीज के लिए क्या चेंजेस है, मैंने पहले भी बताया था कि अगर एज बढ़ती चली जा रही है, लोग हेल्दी ज्यादा रहते हैं, तो मल्टीपल एक्टिव जनरेशन है। अब इनके बीच में एडजस्ट करना है। सस्टेनिंग मैरिजेज बहुत मुश्किल हो गया है, ईगो बढ़ गई है, पीयर प्रेशर बढ़ गया है, कंपेनियनशिप कम हो गई है। और सबसे बड़ी बात क्या हो गई है, जो बहुत डेंजरस है, जो सोशल मीडिया का कंट्रीब्यूशन हो गया है। मतलब मैं अपनी पर्सनल लाइफ की भी बात करता हूँ आपसे, कि अचानक से मैंने किसी के साथ में कभी पढ़ाई की थी, 30 साल पहले कोई लड़की थी, या मेरी वाइफ ने किसी के साथ में को एजुकेशन में थी और कोई लड़का था, और 30 साल बाद वो अप्रोच करता है किसकी, कब, जब हम आगे बढ़ जाना चाहते हैं। दुनिया में सब कोई, वो चीजें पास्ट है, हमारी जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा है, लेकिन वो छूट चुका है। लेकिन अब जो टेक्नोलॉजी क्या करती है, वो उस बैगेज को कभी खत्म ही नहीं होने देती है, और इसका फैमिली रिलेशनशिप में, और लोग इतने शातिर होते हैं ना, ट्रांसफर, ये सबको मालूम रहता है कि आपकी कोई दुखती रग, आपकी कोई प्रॉब्लम अगर आपने शेयर कर ली, तो कैसे आपको वो कंधा देकर या अपने आप को भी वैसा ही एक विक्टिम बताकर, मतलब ये सब गेम्स हैं, लोग खेल कर कैसे मैनिपुलेट कर जाते हैं। और यंगस्टर्स को तो मैं खासकर वार्न करता हूं कि अपने सोशल मीडिया बिहेवियर को बहुत क्लोजली वॉच करें, क्योंकि जब आजकल रिलेशनशिप, संबंधों, रिश्तों की भी जब बात होती है, तो लोग पूरा उसकी ट्रैकिंग करवाते हैं, और एक मिस्टेक भी जो है, डिजिटल ट्रेल कभी खत्म नहीं होती है। अपने बिजनेस में भी जानते हैं कि कभी कभी ऐसा लगता है कि यार पास्ट में मैंने एक ईमेल नहीं भेजा रहता, ये नहीं किया रहता, वो कभी खत्म नहीं होती। बहुत कॉशियस रहिए आप इस मामले में। तो पास्ट कभी खत्म नहीं होता है। पेरेंटिंग के जो है इशू, वो अपने आप में अलग टाइप के हैं। बच्चे जो हैं, वो जिस ढंग से वो डेप्थ कम होती चली जा रही है, वो एकदम उनकी थिंकिंग, उनकी क्रिएटिविटी, बिकॉज वो बोर नहीं हो रहे हैं, वो कम होती चली जा रही है। और यंग एज में वो एडल्ट होते जा रहे हैं। सेल्फी लेने की बीमारी, सेल्फी की जो बीमारी होती है ना, वो आदमी को इगोइस्ट बना देती है। आदमी सेल्फी को लेते लेते फिर वो ज्वाइंट पिक्चर देखना भूल जाता है। वो हर पिक्चर में, हर सिचुएशन में सिर्फ खुद को तलाशने लगता है। तो वो एक कम्युनिटी फीलिंग उसकी डाइल्यूट होने लगती है, गहराई उसकी कम होती है। डिजिटल सेक्सटिंग, ब्लाइंड पियर्स मैंने क्यों लिखा है कि अब जो जमाना आ गया है ना, आपने अगर दोस्ती मूवी देखी होगी कि एक अंधा रहता है और एक लंगड़ा रहता है, और दोनों मिलकर एक दूसरे को कंपेनियनशिप देते हैं, कि वो देख नहीं सकता, उसको चलने में प्रॉब्लम है, तो कंधे पे हाथ रख लेता है, जो देख सकता है वो उसको डायरेक्शन बता देता है, और अंधा जो रहता है वो उसको सपोर्ट कर देता है, और दोनों मिलजुल कर कॉम्प्लीमेंट्री है। और अभी की दुनिया के बारे में तो मैं देखता हूँ कि सब अंधे अंधे मिल गए, आई मीन विद ड्यू रिस्पेक्ट। क्योंकि क्या हो गया है, एक चलन आ गया कि पेरेंट्स को भी जो फ्रेंड रहना है, जब पेरेंट्स को भी फ्रेंड रहना है, तो पेरेंट्स का रोल कौन अदा करेगा, फिर रोकेगा कौन? कई जगह पर जो रोकने की दरकार है, डिसिप्लिन की दरकार है, तो इसलिए टफ लव के बारे में बोलते हैं हम लोग कि प्यार तो करिए, लेकिन डिसिप्लिन को मत खत्म होने दीजिए। बच्चे को ना सुनने की आदत डालिए। अगर खाली उसको मनमानी करने का रास्ता खोल देंगे, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन दे देंगे, इंस्टेंट कल्चर आ गया है। बच्चा क्या देखता है, इधर बटन दबाता हूँ, इधर में मेरे को आंसर मिल जाता है गूगल के ऊपर में, उसका माइंड हर जगह लगने लगता है, तो उसको पर्सनल थिंकिंग कैपेबिलिटी खत्म हो जाती है।
इंटेलेक्ट जो डेवलप होता है ना, नॉलेज और इंफॉर्मेशन एक अलग सब्जेक्ट है, पर इंटेलेक्ट जो होता है वो किसी चीज को तलाशने में होता है, रिसर्च करने में, कभी राइट आंसर मिला कभी रॉन्ग आंसर मिला, ये समझ पाना कि आंसर रॉन्ग है, वो भी गहराई उसी में डेवलप होती है। ये सबका मौका ही नहीं मिल पा रहा है। बच्चे बहुत खतरे में हैं। और कॉम्प्लेक्स फैमिली स्ट्रक्चर, अब आने वाली टाइम में डिवोर्सेज वगैरह ये सब चीजें कहानी घर घर की दिखा के, जो कहानी कभी घर घर की नहीं थी वो कहानी अब घर घर की हो गई। दूसरी वाइफ का तीसरा बच्चा, तीसरी वाइफ का दूसरा बच्चा, ये कहानियां ऐसे कर कुरा कर, एंड यू नो व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स आर गेटिंग एक्सेप्टेड। आई एम नॉट अगेंस्ट बायोलॉजिकल कंपल्सन्स एंड ऑल, लेकिन फैमिली बिजनेस के लिए एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस खड़ी होती चली जा रही है कि हाउ टू डील विद दिस सिचुएशंस एंड प्रोलॉन्ग डाइंग प्रोसेस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि मेडिकल साइंस इतना इवॉल्व हो गया है कि जीना लंबा ही नहीं हो रहा है, हमारा मरना भी लंबा हो रहा है, हम सड़ते रहते हैं। इसी के लिए मैं एक टॉपिक है इंपॉर्टेंट जो मैं यहाँ पे कवर कर लूंगा, पता नहीं मेरे को आगे मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये जो एक चीज होती है कि आजकल वो वेंटिलेटर पे डाल के या कैसे भी डाल के आप सड़ रहे हो, और मैक्सिमम केसेस में फैमिलीज की 50% सेविंग लास्ट के 20, 30, 40 डेज के अंदर में जो इलनेस होती है ना, और अगर वो आप वेल इंश्योर्ड नहीं हो और वेल कवर्ड नहीं हो तो उसके अंदर में साफ हो जाते हैं। और मैंने ऐसे ऐसे केस देखे हैं कि यहाँ पर एक आदमी टोटली ब्रेन डेड हो चुका है, डॉक्टर बोल रहे हैं कि इसमें अगर सांस भी होश भी आ जाएगा तो कुछ बचा नहीं है, लेकिन एक डिसीजन कौन ले, कौन उस लास्ट प्लग को ऑफ करे, कौन लाइफ सपोर्ट सिस्टम को विड्रॉ करे, दीज आर वेरी बिग चैलेंजेस एक्चुअली। तो उसके लिए एक लिविंग विल वगैरह का वेस्टर्न वर्ल्ड में सिस्टम है, आप भी लिख सकते हैं। लीगल मान्यता तो नहीं है, डॉक्टर तो नहीं मानेंगे, लेकिन फैमिली डिसाइड करने में इजी हो सकता है कि सपोज आई से कि समथिंग हैपेंस टू मी एंड डॉक्टर्स कम टू ए कंक्लूजन कि मैं ब्रेन हो गया हूं और 10 दिन तक अगर मैं अपने आप को संभाल नहीं पाता हूं तो मेरे सारे आर्टिफिशियल सपोर्ट सिस्टम विड्रॉ कर लिए जाए, क्योंकि मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वो डिसीजन फैमिली जो नहीं ले पाती वो ले लेगी, अदरवाइज उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि इस डिसीजन को कैसे लें। तो एनीवे ये सब बड़ी कॉम्प्लिकेशन पैदा हो गई हैं। बच्चों के लिए क्या करना है, तो सबसे पहले तो यंग एज में आपको मैं एक किताब के नाम बताता हूं, होल्ड ऑन टू द किड्स। ठीक है, बच्चों के जो भी संस्कार है ना वो 10 से 11 साल की उम्र में पड़ जाते हैं। 10 से 11 साल में आपने उनको जो सिखा दिया वो हार्ड वायर हो जाता है। तो जब आप उसको वो पीरियड में, आप में से काफी दादा दादी होंगे जो भी होंगे, होल्ड ऑन टू द किड्स एक बहुत अच्छी किताब है, जो जिसका मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि आपके बच्चे पीयर ड्रिवन होने वाले हैं या आपकी गाइडेंस के साथ जीने वाले हैं, इसका बहुत एक सिंपल सा टेस्ट है। अगर आप अपने बच्चे को लेने के लिए 9-10 साल के बच्चे के लिए लेने के लिए स्कूल जा रहे हैं और स्कूल में बच्चा आपके पास दौड़ के आ रहा है बताने के लिए कि दिन भर स्कूल में क्या हुआ, या आपको उसको खोज खाज के निकालना पड़ता है कि यार कहाँ हो, किसके बीच में पड़ा हो, अगर आपको उसको खोज खाज के निकालना पड़ता है इसका मतलब उसका ओरिएंटेशन जो है वो पीयर ओरिएंटेशन डेवलप हो रहा है। और अगर वो आपकी तरफ दौड़ के आ रहा है इसका मतलब आपकी बॉन्डिंग स्ट्रांग है। तो इन चीजों को जानिए, अपने घर में बताइए। होल्ड ऑन टू द किड्स, मैंने किताब की नाम बोली, उसको देखिए। टफ लव के बारे में मैंने बोल दिया कि प्यार करिए लेकिन डिसिप्लिन के बाद में। रुकने की कला सिखाइए। सिर्फ एक हैबिट अगर आपने बच्चों को दे दी ना कि जो मांग रहा है उसको इंस्टेंट नहीं देना है, उसको एक बार होल्ड बैक करना है और उसको किसी परफॉर्मेंस से लिंक कर देना है, तो धीरे धीरे वो समझ जाएगा, अपने आप को मैनेज करना सीख जाएगा। उसको बोर होने दीजिए। मैं कनकर्ड बोल के एक जगह है बोस्टन के पास, मैं वहां गया हुआ था, किसी के यहाँ मैं गेस्ट था। उन्होंने अपनी कंपनी $1 बिलियन में बेची है। टेक्नोलॉजी के फील्ड के आदमी है, वो इंडियन ही है, वहां रहते हैं। इनफैक्ट कैलकाटा से काफी लिंक, तो उनका ससुराल कैलकाटा ही है। तो उनके घर पे मैं था और बिलीव करिए कि उनके घर में हिरन आते हैं। उन्होंने अपना घर एक ऐसी जगह लिया है जहां टेक्नोलॉजी नहीं है, वहां वाईफाई नहीं है, मैं इंटरनेट नहीं चला सकता। वो टेक्नोलॉजी के फील्ड के आदमी हैं, लेकिन वो टेक्नोलॉजी को इतना खराब समझते हैं कि अपने घर में नहीं रखते। बिल गेट्स वगैरह अपने बच्चों को कंप्यूटर पे उन्होंने कभी जल्दी से, स्टीव जॉब्स वगैरह तो सब एकदम रिलक्टेंट थे बच्चों को देखेंगे। प्रेम जैन बोल के कैलिफोर्निया में सैन होजे में एक अगेन एंटरप्रेन्योर है जो सिस्को के साथ कनेक्टेड रहे, और उन्होंने भी लगभग $1 बिलियन में अपनी 3-4 कंपनियां बेची हैं। उनके घर की फोटो वो कभी कभी अपलोड करते हैं, तो वो भी वैसा ही है। ये जितने टेक्नोलॉजी के लोग हैं ये जानते हैं कि इन्होंने क्या क्रिएट किया। हम लोगों को भी समझना पड़ेगा कि अब तो वहां पर ये ट्रेंड भी आने लगे हैं कि वो अपने बच्चों को जो है ना स्कूल नहीं भेज रहे हैं, प्राइवेट ट्यूटिंग कर रहे हैं। बहुत डिफिकल्ट है, मैं इसको वॉच नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे खाली शेयर कर रहा हूं कि दुनिया की थिंकिंग किधर जा रही है। तो अपने बच्चों के लिए, अपने लिए टेक्नोलॉजी लाइफ मैप उनका ड्रॉ करिए, उनको गाइडेंस दीजिए कि तुम 9
साल के होगे तो ये होगा, 12 साल के होगे तो ये होगा। ऐसा नहीं है कि उनके हाथ में, बंदर के हाथ में उस्तरा और बच्चे के हाथ में मोबाइल, मतलब कोई डिफरेंस मैं नहीं देखता हूँ। मोबाइल ज्यादा खतरनाक है। बेडरूम का रूल वगैरह बनाना, स्मार्टफोन का, देखिए आप बच्चे को सेफ्टी के लिए फोन दे रहे हैं, तो आपको तो फोन करना है, रिसीव करना, तुम कहाँ हो, उसको बुलाना है, ड्राइवर को तो फोन करना है। स्मार्टफोन देने की एज तो बहुत आगे तक पुश करिए, तो इन्वॉल्व होना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा उनके साथ में, तभी ये। और खासकर मैं ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह को बोलना चाहूंगा कि कभी कभी क्या होता है कि बोलते हैं ना कि मूल से सूद प्यारा होता है, तो प्यार कुछ ज्यादा रहता है, तो उस चक्कर में हम लोग डिसिप्लिन जो पेरेंट्स लाना चाह रहे हैं उसके बीच में कहीं डिस्टर्बेंस तो नहीं बन रहे हैं, उसको जरा ध्यान रखिएगा। अपने बच्चों से भी बात कर लीजिए कि भाई व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, कि आप जो अपने बच्चों को जो डिसिप्लिन देना चाह रही हैं, कुछ भी नर्चर कर रही हैं, उसमें हमारा क्या रोल है, आप उनको क्लियर बता दीजिए और बात करिए और उसको समझने की चेष्टा करिए। जमाना बहुत बदल गया है। अगर आप कोई धमकी देते हैं, कुछ भी डराते हैं बच्चों को, उसको कैरी आउट जरूर करिए। अगर आप रिवार्ड की प्रॉमिस करते हैं, उसको भी कैरी आउट जरूर करिए। ये नहीं करने से आपकी क्रेडिबिलिटी लूज हो जाती है, आपका भय खत्म हो जाएगा, या आपके ऊपर विश्वास खत्म हो जाएगा कि नहीं, बोलते हैं देंगे नहीं, मैं ऐसा कर भी लूंगा तो ऐसा नहीं होगा। तो अपनी जबान की बहुत वैल्यू करिए बच्चों के आगे में। एंड इन रियल लाइफ, ये एक स्लोगन अभी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है कि यार फोन पे क्या बात करो, चलो मिलते हैं, अभी नहीं, कोरोना के टाइम में नहीं, कोरोना के टाइम में तो यही ठीक है, लेकिन रियल लाइफ में अदरवाइज मिलने की, मतलब हर जगह पर फोन को साइड करके इन रियल लाइफ हम लोग जिंदगी को वापस लाएंगे कि नहीं लाएंगे। और अभी तो मौका मिल गया, अब समझ में आने लगा है कि भाई बता तो यही है, इसको रखिए। जीतू जी, Yes, sir. टाइम बता दीजिए तो मेरे को, टाइम। Time is 12. So we ठीक can है, 5-10 have मिनट में खत्म after करता 5. हूँ, कोई Yes, क्वेश्चन ले yes. लेते We हैं can क्यों then have a question. Yes, yes, sure. हाँ। एक बोला ही जाता है कि फैमिली दैट ईट्स टुगेदर एंड प्लेस टुगेदर एंड प्रेस टुगेदर स्टेज टुगेदर। तो जितना अभी तो मौका मिला है पूरा रिहर्सल कर लीजिए। अभी तक तो इससे पहले आप कहाँ हो, कहाँ आने की टाइम कौन सी, किसकी जाने की टाइम कौन सी, अभी सब कन्वर्ज कर गए हैं, एक साथ हैं, तो कम से कम इस डिसिप्लिन को वापस ले आइए। मौका तो मिला हुआ है, सब बंधे हुए हैं, करिए इसको। और डिजिटल फास्टिंग, ये कॉन्सेप्ट आ रहा है कि सैटरडे को हम लोग उपवास करेंगे मोबाइल फोन का, मतलब ये हम करेंगे कि आज उस दिन हमारे घर में मोबाइल फोन नहीं चलेगा। तो डिजिटल फास्टिंग करिए, सॉलिट्यूड, मेडिटेशन, अपना इनर वाईफाई को पाइए ना, बाहर की वाईफाई तो बहुत है, अंदर के कनेक्शन बैठाइए। तो थोड़ा ये सब मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मतलब मैं खुद आपको बता सकता हूँ कि इसका इतना बड़ा मैं बेनिफिशियरी हूँ। मेरा दिमाग बहुत तेज चलता है, मतलब मैं बता नहीं सकता आपको। तो 10 मिनट का मेडिटेशन मिरेकल कर देता है। आप एकदम, आप अगर विपश्यना में आनापान बोलकर एक है, अब 10 मिनट का आनापान करिए, वीडियो मिल जाएंगे आपको गोयनका जी के। वर्ल्ड में आज की डेट में, मैं आपको इंडियंस को प्राउड होना चाहिए, ये बात जानते नहीं है सब कोई, कि योगा तो है ही है हमारा एक ब्रांड, ये जो मेडिटेशन है गोयनका जी का, वर्ल्ड के सम ऑफ द फाइनेस्ट ब्रेन्स, अगर आपने युवल नोआ हरारी का नाम सुना हो, इन दिनों में जितनी उनकी थॉट प्रोसेस लोग फॉलो करते हैं ना, दुनिया में शायद किसी की नहीं करते हैं। और उन्होंने लिखा है कि 24-25 साल की उम्र में जब मेरा दिमाग एकदम खराब हो गया था और मैं एकदम आउट ऑफ कंट्रोल चला गया था, तो मेरे को कहाँ से मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरे को गोयनका जी का किसी ने रेफरेंस दिया और मैंने ये शुरू किया। और दुनिया के बेस्ट ऑफ द लोग जो है ना, ये इसको फॉलो करते हैं, विपश्यना को। विपश्यना थोड़ा डिफिकल्ट जरूर है, लेकिन इसके रिवार्ड्स अमेजिंग है। और बहुत लंबा नहीं करना है, आप 10 से 15 मिनट का भी कर लेंगे ना आनापान, तो उसका फायदा मिलेगा। बच्चों को कराइए, मैं यहाँ बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, उनको अकेलापन का थोड़ा प्रैक्टिस कराइए। और ये सब करेंगे जब, और उनको भी साथ लीजिए, देखिए उनकी फैकल्टी कितनी डेवलप होगी, उनके अंदर में गहराई आएगी, तो फोकस बढ़ेगा उनका। और प्यार को कैसे सबसे बढ़िया इजहार किया जाता है, व्हाट इज द वे वी कैन एक्सप्रेस आवर लव इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। लव, केयर, रिस्पेक्ट, अटेंशन, सब कुछ जब आप अटेंटिव लिसनिंग करते हो ना, आप घर पहुंचे, आपके माँ बाप है, कुछ बोलना चाहते हैं आपसे, जब आपने उनको अपना अनडाइल्यूटेड अटेंशन दिया है, तो एक तरह से आपने अपना रिस्पेक्ट दिया है उनको। जब आपका बच्चा आपसे कुछ कहना चाहता है, पापा पापा आज मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, या आपकी वाइफ आपसे कुछ शेयर करना चाहती है, तो जब आप उसमें पूरा ध्यान उसको देते हो, तो उसको वो लव है।
तो लव, रिस्पेक्ट, केयर, ये जितनी चीजें हैं ये लिसनिंग में घुसी हुई है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग एक ऐसी दुनिया में आ गए हैं जहां सिर्फ बोलने को, स्पीकिंग को हम लोग जो है ना कम्युनिकेशन स्किल समझते हैं, लिसनिंग को तो मतलब एकदम गॉन कर दिया गया है। लिसनिंग को बढ़ाइए। वो आप व्हाट्सएप में भी उस बिहेवियर को देख सकते हैं कि जो कोई मैसेज आया हम उसको एब्जॉर्ब करने में इंटरेस्टेड नहीं है, उसको समझने में इंटरेस्टेड नहीं है, उसको फर्दर फॉरवर्ड करने में इंटरेस्टेड है। उल्टी करते रहते हैं दिन भर, उसकी जुगाली जो करते नहीं है। पहले मैं एक थॉट कभी मिलता था 3-4 दिन में, कोई अच्छी बात सुनने में कान में आ जाती थी तो 3-4 दिन तक उसकी जुगाली करते थे, वो सब तो खत्म हो गया है। कैसे आपके बच्चों में वो गहराई है? क्योंकि ये पीरियड में आपने ये हैबिट नहीं डाली तो आगे फैमिली और फैमिली बिजनेसेस खत्म है, कुछ नहीं होगा फिर उनका। लर्निंग की हैबिट, ये तो मैं बोल चुका हूं इसलिए मैं रिपीट नहीं करूंगा कितना इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें ये बात बोलता हूं कि वर्ड है लर्नेबिलिटी। अभी क्या है, कोई चीज को सीखना नहीं, सीखने की टेक्निक क्या है, क्योंकि आपको बार बार सीखना पड़ेगा और जो सीख गए उसको भूलना भी पड़ेगा, नई चीज सीखनी पड़ेगी। तो सेल्फ लर्निंग आप कैसे डेवलप करेंगे? तो लर्नेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, तो वो आप में बच्चों में सब में दीजिए इसको। और लेडीज के लिए मैं बोलना चाहूंगा खासकर जो है कि ये जो नई दुनिया आई है ना, इसमें जो रैशनल साइड है, जो मैथमेटिकल साइड है, इसको कंप्यूटर रेप्लिकेट कर ले रहे हैं। वो आदमी को बीट कर दे रहे हैं। लॉयर्स, टिपिकल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इन सब की जॉब जो है कंप्यूटर ले लेगा। लेकिन जो केयर, अटेंशन, एम्पैथी, ये जो वीमेन की जो स्ट्रेंथ है वो सब्स्टिट्यूट नहीं होगी, कंप्यूटर उनको सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएगा। तो आप देख भी रहे हैं कि अभी भी जो कोरोना वार है इसमें मोर देन टेक्निकलिटी, ये जो डेडिकेशन है, ये जो डिवोशन है, ये जो समर्पण है, ये जो सेवा है, इनकी वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। तो विमेन के लिए एक वंडरफुल टाइम है। इनको दोनों हाथ में लड्डू है, घर में काम करें तो घर के लिए भी और बाहर की दुनिया भी इनके लिए खुल गई है। और जैसे हमारा ऑफिस घर में आएगा धीरे धीरे, मेरे ख्याल से दोनों पहलू स्ट्रांगली बराबर, पहिए जो है बराबर होकर बिजनेस में उनका रोल ये मतलब बहुत अच्छा एक काम हो सकता है। तीसरी बात, मदरहुड की तो मोनोपोली है आपकी, जो फादरहुड की कोई मोनोपोली नहीं होती है, मदरहुड की तो मोनोपोली, जो कि आने वाली टाइम में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है ह्यूमैनिटी के लिए। अरे बाकी तो सब रेप्लिकेट हो जाएंगे, हर चीज मतलब टेक्नोलॉजी के थ्रू मैनेज हो सकता है, लेकिन माँ का रिप्लेसमेंट, मैं सरोगेट मदर उसकी नहीं बात कर रहा हूँ, वो सब बहुत रेयर फेनोमेना है, बट इन जनरल बच्चा और माँ ये कनेक्शन आप ही के हाथ में है। आप ही पूरा भविष्य का निर्माण करने में सबसे सक्षम है। और दूसरी बात कि बी रेडी फॉर मल्टीपल इनिंग्स, ये मैं आजकल हर को बोलता हूं कि एक टाइम आता है 35-40 उम्र तक आते आते जहां पर आपके बच्चे आपकी होराइजन के बाहर जाते हैं। उस समय अपनी एक नई दुनिया क्रिएट करने के लिए, नई जिंदगी क्रिएट करने के लिए तैयार हो जाइए। बहुत कुछ करने को है आगे लाइफ में और उसको जरूर करिए। ये एक मेरी बड़ी फेवरेट वो है, जोश मलियावादी ने कहा है कि कारोबारे जहां संवरते हैं, कारोबारे जहां संवरते हैं, होश जब बेखुदी से मिलता है। होश मीन्स आप एक्सपीरियंस लोग और बेखुदी माने यंगस्टर। तो जब दोनों आपस में मिलते हैं और एक दूसरे के सच को, इस इमेज में देखिए कि दोनों के एक दूसरे की हकीकत को जब ठीक से समझ पाते हैं तो वहां पर कोई भी बिजनेस ग्रो करता है, जब दो जनरेशन आपस में मिलती है। और ये जो मौका मिला है ना, फैमिली बिजनेस की एक बहुत बड़ी कंप्लेन रही है, मैं जहां भी जाता हूं एज ए स्पीकर, दो क्वेश्चन बड़े कॉमन रहते हैं। एक कि हमारे यंगस्टर बिजनेस में आना नहीं चाहते, एंड सेकेंड कि ये जनरेशन गैप का इश्यू। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो आपके बच्चे क्यों नहीं आना चाहते हैं और कैसे आएंगे? तो एक तो ये है जो मैंने अक्सर देखा और मैं लोगों को बोलता हूं कि आप अपने बिजनेस को करते हुए क्या अपने बच्चों को खुश नजर आते हैं? डू यू रिफ्लेक्ट हैप्पीनेस इन डूइंग व्हाटएवर यू आर डूइंग? अगर आप दिन भर आकर रोते हैं घर में आके तो बच्चा तो डर जाता है, उसको लगता है यार मैं इससे दूर ही ठीक हूँ। तो एजुकेशन उसको एक लिबरेशन का एक उसको मौका मिलता है, वो पढ़ लिख कर फिर वो बाहर जाता है। तो ज्वाइंट फैमिली में ये प्रॉब्लम अक्सर आती है कि वो चाचा के बारे में बात, मम्मी पापा बैठे हैं तो वो उसकी बात, वो उसकी बात, बहुत कॉशियस रही है। अगर वो बातें, देखिए बातें तो होंगी, एक तो उसको ह्यूमन लेवल पे एक्सेप्ट करिए कि बातें होंगी, आदमी वेंटिलेट तो कहीं करेगा ना। मनभेद नहीं है, मतभेद है, और कहीं ना कहीं अपनी अर्धांगिनी से, अपने बेटर हाफ से आप उससे शेयर करते हैं, पर ध्यान रखिए कि बच्चों पे मैं क्या उसका इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। दूसरा बात है कि जब बच्चे आ जाए, मैंने कई जगह देखा है कि बच्चा गया एमबीए मार्केटिंग करके आया, अब एमबीए मार्केटिंग में तो कोई और बैठा हुआ है, तो उसको फिर बोलते हैं काम कर तुम प्रोडक्शन संभालो। वो बच्चा फिर फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। आप इनिशियली सेट करके भेजिए, इसको वेल प्लान कर लीजिए
कि बच्चा अगर आएगा उसको वही पढ़ाई में भेजिए, अगर उसको बिजनेस में वापस लाना है तो मैं उससे भी बेटर आपको ऑप्शन बताऊंगा। न्यू थिंकिंग, न्यू मेथड, न्यू बिजनेस। बच्चा आने के बाद उसको एक ही बात बोल दीजिए कि तू यार, जैसे मैंने बोला ना, वो जो करते हैं कि यंगस्टर का एक अलग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वैसा ही उनको बोलिए कि तू कुछ नई करके दिखा यार, कुछ नए ढंग से हमारे बिजनेस को, आवर बिजनेस इन 3 years, उसके ऊपर एक सबसे पहले बिजनेस प्लान रेडी कर। 3 years डाउन द लाइन हमारा बिजनेस कैसे होगा, तुम्हारे हिसाब से क्या चेंज आना चाहिए, कल्चर को चेक कर, जो भी करना है कर। उसको पूरी अथॉरिटी मत दीजिए, क्योंकि वो पावर का मिसयूज ना कर ले। उसको नीचे से शुरू कराइए, अप्रोप्रिएट जगह से शुरू करें। और जनरली हम लोग तो एडवाइस करते हैं कहीं बाहर 2-3 साल काम करने के बाद आएगा, तो अगर वो कुछ अचीव करके आता है तो आपके अंदर के लोग भी उसकी रिस्पेक्ट ज्यादा करते हैं। तो वो सब चीजों को ध्यान रखिए। एक बी प्रिपेयर्ड। एक मेरे फ्रेंड थे जिनका बहुत अच्छा रेस्टोरेंट बिजनेस था, लेकिन उसको कभी भी रिनोवेट नहीं कराते। हम लोग बोलते थे यार क्या तुम इसको इतना गंदा रखते हो। एक बार अचानक से देखा सब कुछ रिनोवेट हो गया, एकदम चमचम हो गया है। तो मैंने बोला भाई ये क्या चमत्कार हो गया है। बोले यार क्या बताऊं, अब लड़का है वो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का कोर्स करने गया है बाहर में। तो मेरे को लगता है कि जो मेरी पुरानी वाली स्टाइल की दुकान थी उसमें तो वो वापस नहीं आएगा। अब मैंने उसको इस ढंग का बना दिया है कि कम से कम वो मन बना सके, आने के बारे में सोच सके। तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है। मतलब सिर्फ आप बोल देंगे हो जाएगा, इसको मत करिए। आप उसके हिसाब से कंड्यूसिव एटमोस्फेयर। तीसरी एक और प्रॉब्लम मैंने देखा है लोगों को, अब ये सब तो तुम्हारा है, सब जो चाहिए तो ले लो। अरे आज के बच्चे ऐसे बार बार मांगना नहीं चाहते, खासकर जिनकी शादी हो जाती है ना, उनको आप फिक्स करिए उनकी पॉकेट मनी, उनका महीना का कितना पैसा मिलेगा, उनकी छुट्टी कितनी होगी, उनका वर्किंग आवर कितना होगा, उनको ये फील करा दीजिए कि वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हैं। तो उनके लिए बड़ा आसान हो जाता है। अब वो आप उसको ₹1,00,000 महीना दे रहे हैं, ₹1.5 लाख महीना दे रहे हैं, उसमें ₹50,000 उसका आपके हिसाब से खर्चा, ₹1,00,000 वो बचाए, उसको उसके लिए प्रेरित करिए। वो घूमने फिरने जाने पे खर्च करता है, उस पर प्रेरित करने दीजिए उसको फ्रीडम का एहसास होने दीजिए। और अपना विस्तार करिए, अपना विस्तार करिए। आप भी जब लाइफ में देख रहे हैं कि एक आ गया है, तो मैं अब सोशल वर्क या अदर एरियाज में अपने कोई इंटरेस्ट को क्रिएट करो। अगर आप अपना इंटरेस्ट नहीं क्रिएट करेंगे ना, तो आप फिर छोड़ेंगे नहीं उस जगह को, और छोड़ेंगे नहीं तो वो सफोकेट फील करेंगे। मैंने ऐसा ऐसा केस देखा है कि 70 साल के दादाजी वहां पर मौजूद हैं और 30 साल का पोता भी आ गया बिजनेस में, और 50 साल का जो बीच वाला है ना, वो उसको तो कभी मौका ही नहीं मिला। मतलब इधर से 30 वाला पुश कर रहा है, उधर से 70 वाले ने जगह नहीं छोड़ी है, उसकी तो जनरेशन ही खत्म हो जाती है। दिस इज नॉट। प्रिंस चार्ल्स को देख रहे हैं आप, मैं खाली एक उदाहरण देता हूँ। प्रिंस चार्ल्स क्या है आज की डेट में, अभी तक महारानी जी बैठी है और नीचे बच्चे तैयार हो रहे हैं। वो तो एक शोपीस के अलावा उसकी तो जिंदगी कुछ है ही नहीं। एक मैं बोलना चाहूंगा कि ये मौका आया है जब आपके यंगस्टर रह रहे हैं और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब्स को लेकर बहुत इशू आएंगे, तो काफी लोग उनमें ये शायद वो कंसिडर करें कि बिजनेस में मैं वापस आऊं। तो 2-3 मॉडल मैं आपको दे देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात समझना। एक आप टाटा का मॉडल देखिए, इवन रिलायंस को भी देख लीजिए। अभी जो हुआ कि उन्होंने सऊदी अरेबिया की जो कंपनी है, क्या नाम है उसका, नाम मेरे को अब याद नहीं आएगा, ठीक है, जिसे ऑयल का वो जो एक उनका डील हुआ था, एक ये जो पैसे लगने थे, अभी बाजार की हालत इतनी खराब हो गई है कि इट इज ऐसा कहा जा रहा है कि वो डील शायद अब फॉल कर जाएगी। बट चूंकि उनके पास में एक जियो था, तो उन्होंने उसके थ्रू सब्स्टिट्यूट कर लिया। अब किसी का एक ही बिजनेस हो, आप बिरला के जो मैक्सिमम हाउसेज है, बिरला फैमिली के जो पार्टीशन हुए, उसमें आज भी कुमार मंगलम बिरला फैमिली जो है वो जिंदा है, क्योंकि उनके पास मल्टीपल बिजनेसेस थे। सनराइज बिजनेसेस भी थे, अगर सनसेट बिजनेसेस थे तो सनराइज बिजनेसेस भी थे। अब इसके मामले में टाटा हाउस नंबर 1 है। टेल्को की हालत खराब है, टिस्को की हालत खराब है, लेकिन उनके पास टीसीएस है। उनका अभी टाइटन एकदम ऊपर आ रहा है। कुछ ना कुछ नए बिजनेस में घुसते रहते हैं। अगर आप लोग अपनी पूंजी का 30% पैसा एक रिस्क कैपिटल की तरफ से अलग निकाले, और यंगस्टर जब आए तो उसको बोले देखिए हम वेंचर कैपिटलिस्ट बन जाते हैं, तुम नया आइडिया लेके आ, तू कुछ नया शुरू कर, मैं उसमें हम लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं, बहुत बढ़िया रहेगा। वो कुछ नई चीज क्रिएट होती चली जाएगी। अब 3-4 बच्चे आए, उसमें 2 फेल हो जाएंगे, 2 क्योंकि नए बिजनेस के साथ ऐसा होता है, और 1-2 कोई सक्सेसफुल हो गए तो ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर रहनी चाहिए कि बाकी सब फिर उसको ज्वाइन कर लेंगे। तो एक उनके लिए सेफ्टी नेट बन गया, आपके बिजनेस के परपेचुएशन की एक रास्ता बन गया कि भाई फैमिली का वेल्थ जो आगे बढ़ता चला जाएगा। और एक सफोकेशन भी नहीं क्रिएट हुआ कि एक ओवर क्राउडिंग हो गई, एक ही बिजनेस में 3 की जगह 5 आदमी हो गए, 5 की जगह 8 हो गए, आप इससे भी बच जाएंगे। तो ये एक समोसे की दुकान बोलकर मैं अक्सर बोला करता हूँ कि 2 दोस्त थे, दोनों ने एक साथ करियर शुरू किया। एक पढ़ा लिखा था, एक उतना पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन स्ट्रीट स्मार्ट था। तो पढ़े लिखे आदमी ने एक फैक्ट्री के अंदर में नौकरी शुरू की क्लर्क के रूप में, और जो अनपढ़ था उसने बाहर में चाय समोसे की दुकान शुरू की। 15 साल के बाद में ये आदमी का प्रमोशन होते 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 ये फैक्ट्री का मैनेजर बन गया। तो बाहर जाके अपने दोस्त को बोलता है, क्यों क्या बोलते हो, देखो मेरे को, मैंने
पढ़ाई की तो आज मैं यहाँ पहुंच गया, मैं आज मैनेजर हूँ। तुमने क्या किया? तुम तो आज भी चाय समोसा बेचते हो। तुमने धीरे से बोला हाँ कोई खास बात नहीं है, करते करते अब क्या, चाय समोसे में तो रोज उतना ही बिकता है, उतना ही इन्वेस्टमेंट है, तो रोज का प्रॉफिट मेरे पास जमा हो जाता है। तो मैंने ऐसे ऐसे 5-7 और खोल लिए हैं जिसमें 5-7 लोगों को बैठा दिया, वो बेचारे कमा के जो दे दे मैं ले लेता हूँ। बीच में पैसा कुछ ज्यादा हो गया तो कोई जमीन वमीन कोई आके आइडिया दे देता है, तो 2-4 जमीनें खरीद ली। अब कोई मेरे को बता रहा था कि उसमें एक जमीन 10 करोड़ की हो गई, एक 5 करोड़ की हो गई, ऐसा कुछ हो गया है। अब बेटा जो है वो पढ़ने के लिए गया है बाहर, तो देख रहा है, वो बोलता आएंगे तो कुछ फ्रेंचाइजी कुछ शुरू करेंगे, मालूम नहीं अभी सब क्या है। आप समझ रहे हैं कि इस बात में क्या बात है? इस बात में बात ये है कि अब ये जो बेटा है ना, ये उस जगह शुरू करेगा जहां उसका बाप छोड़ रहा है। और बिजनेस जो जो जॉब में रहते हैं, ब्रिलियंट से ब्रिलियंट कंपनी के एमडी का बेटा भी शुरू करेगा तो उसको 0 लेवल से शुरू करना है, कोई लीगेसी नहीं है इसमें। ये पावर है फैमिली बिजनेस का, और ये बच्चों को समझना पड़ेगा। आज फैमिली बिजनेस के बच्चे, एक रिसर्च है ये कि फैमिली बिजनेस के बच्चे जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब करते हैं ना, वो सुपर परफॉर्मर होते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि उनमें इनसिक्योरिटी नहीं रहती है, अरे कुछ हो गया, नौकरी चली जाएगी, तो बिजनेस तो है ही अपना। तो वो बहुत आउटस्पोकन रहते हैं, फ्रैंक रहते हैं, अपने आप को एसर्ट करते हैं, और इसका फायदा कॉर्पोरेट वर्ल्ड को मिलता है। तो कैसे अपने बच्चे आप पाए, मैंने आपको कुछ बातें शेयर की। आई होप कि आप लोग इसको, मैंने बताया कि आप 30% का करिए और स्टार्टअप में जरूर इन्वेस्ट करिए। किसी ने थोड़ा बहुत 10-5% पैसा अपना स्टार्टअप में लगाइए, कोई पैसे आपके डूबते भी है ना, किसी को फॉलो करिए। मैंने बोला पार्टनर मत बनिए, पार्टनर बनने में प्रॉब्लम है क्योंकि आप उस आइडिया को उतना समझते नहीं है। लेकिन कोई अच्छे जो समझदार लोग हैं या बहुत वेल रेप्यूटेड फंड है इसका जो अच्छे ढंग से कर रहा है, तो उसको आप करिए। कुछ बातें जो है मैं यहाँ पे, जीतू जी। यस सर, प्लीज। मेरे को लगता है कि अच्छा 1-2 स्लाइड और दिखा के फिर मैं रुक जाऊंगा, ठीक है? ओके। अपॉर्चुनिटी की कुछ बात कर लेते हैं, थोड़ा सा फ्लेवर दे देते हैं कि आगे क्या अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, ठीक है? राइट, प्लीज। देखिए ये कि बड़ी पावरफुल एक स्लाइड है कि आई स्केट टू वेयर द पक इज गोइंग टू बी, नॉट वेयर इट हैज बीन। मतलब फुटबॉलर को आप देखें जो अच्छे होते हैं या जो इस तरह के स्पोर्ट्स में होते हैं, तो बोलते हैं कि पहले हम लोग पुराने जमाने में कैसे फुटबॉल खेलते थे कि हम लोग एक दूसरे को देते थे जहाँ खड़े हुए वहां पर। अब तो एडवांस हो गया, विजुअलाइजेशन रहता है, जहां वो दौड़कर पहुंच सकता है वहां तक पहुंचा देते हैं। तो अपॉर्चुनिटी के बारे में भी हमारा विजुअलाइजेशन वहां होना चाहिए कि कहाँ होने वाली है दुनिया। अब ये जो चेंजेज है, चलिए मैं आपसे कुछ बात करता हूँ। देखिए ये जो कोविड का जो फिनोमेना हुआ है ना, इसमें क्या क्या चीजें, मैं कुछ वर्ड्स आपको बोल रहा हूँ जो आप याद रखिएगा। स्ट्रेंजर से हम लोगों को डर लगेगा। अब इस वर्ड को याद रखिए कि इसमें क्या हो, इसमें फैमिली बिजनेस की ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। अब आप कोई से डिलीवरी ले रहे हैं तो आपको डर लगता है, अब नीचे में दुकान है आपकी, आप मोहल्ले में रहते हैं या बिल्डिंग में रहते हैं, तो मैं आपको साथ सेफ फील करूंगा, मेरे को अजनबी लोगों से मिलना उतना अच्छा नहीं लगेगा। हर जगह इसके बहुत निगेटिव इम्प्लीकेशन भी होने वाले हैं, लेकिन हर जगह लोग स्ट्रेंजर से डरने वाले हैं। टच वर्ड को याद रखिए, जहां भी टच इन्वॉल्व है, चाहे वो फिजिकल है चाहे ऑब्जेक्ट के साथ है, वहां बहुत प्रॉब्लम है। क्राउड से प्रॉब्लम है, हाइजीन और हेल्थ में बहुत अपॉर्चुनिटी है। ये जीतू जी, मैं कुछ चीजें आपको भेज दूंगा, आप चाहेंगे तो शेयर कर लीजिए। लोगों को आइडियाज की तलाश रहती है, तो मैं इसको शेयर कर दूंगा। नहीं, हमारे बुलेटिन वाले लिंक में अपडेट कर देंगे, तो पीपल हु एक्सेस आवर बुलेटिन पेज विल बी एबल टू सी दिस। ठीक है, तो मैं इसको एक अलग से दे दूंगा आपको, ठीक है? तो फिर उसको अपने आगे बढ़ा लेंगे। अभी क्या चीज करने का राइट टाइम है? सबसे पहले मैंने बोला कल्चर को चेक कर लीजिए अपना, बड़े चेंज लाने का, बिग टिकट ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। अब अभी लोग मेंटली प्रिपेयर्ड है, आपके स्टाफ भी मेंटली प्रिपेयर्ड है, आप भी मेंटली प्रिपेयर्ड है। अदरवाइज क्या होता है, सक्सेसफुल आदमी के साथ बड़ी प्रॉब्लम होती है। हम लोग मैनेजमेंट कंसल्टेंट बोला करते हैं कि व्हाट इज द नेक्स्ट वर्स्ट थिंग आफ्टर सक्सेस, तो हम लोग बोलते हैं आफ्टर फेल्योर, तो हम लोग बोलते हैं सक्सेस। क्योंकि फेल्योर के बाद में नेक्स्ट वर्स्ट थिंग सक्सेस क्यों बोलते हैं कि आदमी की फिर वो रिसीव करने की, सुनने की, समझने की, जानने की क्षमता कॉम्प्रोमाइज है। लेकिन अब सबको झटका लगा हुआ है, तो इसका फायदा जरूर उठाइए। प्राइस तो आप पे कर ही रहे हो, प्राइस पे करके आप इसे कुछ लेके नहीं निकले, इतनी बड़ी गलती नहीं। तो बिल्कुल जो बड़े परिवर्तन आपको लाने हैं उसको ले आइए, आपके स्टाफ भी रेडी है, आप भी रेडी है, इसको कर लीजिए। अपने पुराने बैगेज कुछ ऑफलोड कर दीजिए। कभी कभी लगता है ना कि घर में एक आग लगी और पता चला कि क्या लेके भागे, क्या लेके दौड़े, फिर अच्छा ये पुराना मेरा ये चीजें, फिर अचानक चलता है कि सब कुछ जल गया, फिर बाहर आके लगता है कि यार रिलीफ ही मिल गया। मैं अपने आप तो इन चीजों को जिंदगी में कभी खत्म ही नहीं कर पाता। तो कहीं पर हिंदुस्तान के पास तो ऐसी इतनी पुरानी सड़ी गली चीजें थी जो हम लोग बैगेज की तरह ढोए चले जा रहे थे, शायद उनको खत्म करने का मौका है। तो एक उदाहरण मैं अक्सर दिया करता हूँ कास्ट सिस्टम को लेकर
कि शायद ये जो हाइजीन को लेकर रिवॉल्यूशन आ रहा है ना, इसमें मैं बहुत बड़ी एक पॉजिटिविटी देखता हूँ कि अगर हाइजीन इस कंट्री का इंप्रूव हो जाता है तो फिर मेरे को किसी के साथ खाना खाने में जाने आने में प्रॉब्लम। मैंने एक एग्जांपल दिया, ऑटोमेशन की ह्यूज अपॉर्चुनिटी है, फ्रॉम इन इट टू ऑन इट। आप बिजनेस के अंदर इतने लिप्त थे, इतने घुसे हुए थे, अभी मौका आया कि आप बिजनेस को ओवरव्यू के ढंग से चला रहे हैं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से दूर रह के चला रहे हैं, आपकी पर्सपेक्टिव बदल जाएगी। इसका फायदा उठाइए। सक्सेशन प्लानिंग नॉट ओनली अपनी फैमिली को लेकर, इवन जो क्या हो रहा है, एक बहुत बड़ा रिस्क मैनेजमेंट का एंगल आ रहा है कोविड के अंदर में। ये एडवाइस किया जा रहा है हर बिजनेस को कि आप अपनी पूरी टीम को 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए और हर कॉम्पिटेंसी को दोनों टीम में रखिए और दोनों को आपस में मत मिलने दीजिए। दोनों के हो सके तो शिफ्ट भी चेंज कर दीजिए, क्योंकि एक में किसी कोई केस आ गया तो पूरी कंपनी नहीं तो बैठ जाएगी, क्योंकि उन सबको क्वारंटाइन होना पड़ेगा पूरी की पूरी टीम को। तो आपका प्लान बी के रूप में दूसरी टीम है। इसका फायदा क्या होगा, जो मुनीम जी, जो अकाउंटेंट अपने जूनियर को नहीं डेवलप करता था, सब डेवलप हो जाएंगे। उसका फायदा उठा लीजिए। अभी ये पूरी एकदम मेंटरशिप का जबरदस्ती थोप दीजिए और उनसे करवा लीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम मैं बिजनेस में देखता हूँ। और ये लास्ट पॉइंट क्या थी, फॉर्मेट्स। हाँ, ये एक ऐसी चीज है, मैं एक बहुत बड़ा बिलीवर हूँ। देखिए, जिंदगी के कुछ अनुभव तो हो ही गए हैं। मेरे को कई लोग बोलते हैं कि इसका बिहेवियर कैसे चेंज करूं, ये कल्चर को कैसे चेंज करूं। ये जो कंसल्टेंट जब चेंज मैनेजमेंट वगैरह के लिए फैमिली बिजनेस में जाता हूं, तो जो मेरा एक बहुत बड़ा अनुभव आपसे शेयर करा, मैं बोलता हूँ यार बिहेवियर में चेंज कितना कर पाऊंगा, कल्चर में कितना चेंज कर पाऊंगा, मैं नहीं जानता। तुम्हारे जो रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स है ना, उसको देखता हूँ। ये मैं फर्म बिलीवर हूँ कि आप फॉर्मेट्स को चेंज कर लीजिए, कल्चर चेंज हो जाएगा। बहुत एक सिंपल सा टूल दे रहा हूँ आपको। आपके जितने, जिस ढंग से आप रिपोर्ट रिसीव कर रहे हो और जिस ढंग से आपके जूनियर बना रहे हैं, आपका डैशबोर्ड क्या है, कौन सी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन आज के दिन में इंफॉर्मेशन रिलेवेंट रह गई है, कौन सी आप हिस्टोरिकली, उसको डायनामिक रखिए। उसको मैं, आप जीतू जी इस पे याद रखिएगा, मेरा एक एमआईएस डेवलप करने के बारे में एक नोट बनाया हुआ है, मैं दे दूंगा, आप सबसे शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को ये एरिया में पता रहना चाहिए कि आप किस, देखिए डेटा जो है ना, जब आप लोगों ने बहुत में सुन लिया होगा कि डेटा इज द न्यू ऑयल, डेटा सब कुछ है, डेटा से ही बिजनेस ड्राइव होता है। आप अभी मैं लोगों से ये पूछता हूँ ना कि आपके दुकान में कौन कौन कस्टमर आते हैं, उसका मोबाइल नंबर और नाम बता पाइएगा, तो नहीं बताते हैं, पता ही नहीं उन्होंने कभी हिस्टोरिकली इसको ट्रैक। और आज के दिन में हो गया है कि उनको बर्थडे का विश भेजो, वो जो नए नए छोकरे आते हैं और नई टेक्नोलॉजी आती है उसमें ये सब काम कर लेते हैं। आपको भी करना पड़ेगा, पैटर्न्स को बदलिए, इन चीजों को बदलिए। आप खाली फॉर्मेट वर्ड को याद रखिए और फिर मेरे को थैंक यू बोलने जरूर आ जाइए। चलिए मैं कंक्लूड करता हूँ। ये एक बच्ची थी, एक क्रिश्चियन फैमिली की स्टोरी है, छोटी सी, बहुत छोटी सी स्टोरी है। उन लोगों की हैबिट थी कि हर संडे वो लोग चर्च जाया करते थे। तो एक संडे के दिन प्लान बना कि आज हम लोग वहां जाएंगे, प्रे करने के लिए जाते थे, प्रेयर बोलते थे संडे को, कि आज हम लोग जाएंगे बीच के ऊपर में। तो बच्ची छोटी सी थी, उसने आके बोला, पापा पापा आज हम लोग बीच पे जाएंगे तो हम लोग प्रे कैसे करेंगे। तो पापा ने जवाब दिया कि हम लोग प्रे तो कहीं से भी कर सकते हैं, तो कर लेंगे। बच्ची इनोसेंट है, छोटी सी, वो क्या बोलती है, पापा कर तो सकते हैं पर करेंगे क्या, विल वी रियली डू इट। द पॉइंट इज कि अभी हम लोगों ने बहुत बातें सुनी, बहुत बातें हम जानते हैं। अभी रिसेंटली मैंने अब अपनी लाइफ के लिए इन्वेंट्री बनाने के लिए फॉर्मेट्स वगैरह सर्कुलेट किया। आप में से काफी लोगों को मिले होंगे कि उसका काफी सराहा भी गया फॉर्मेट को, और मैं उसको इम्प्रूव भी कर रहा हूँ। लेकिन जब फाइनली करने का टाइम आता है, डू वी रियली डू इट, दैट्स द मिलियन डॉलर क्वेश्चन। और कैरेक्टर की डेफिनेशन है कि लॉन्ग आफ्टर द डिसीजन ऑफ डूइंग समथिंग इज टेकन, इफ यू कैन स्टिल परसिस्ट विथ इट, दैट इज द साइन ऑफ योर कैरेक्टर। आई विश एंड होप कि आप सब जो कुछ भी एक रिजॉल्व ले रहे हैं, जो भी एक डिसीजन ले रहे हैं, इस तरह की बातें शमशान में राख तक ना रह जाए। कहीं ना कहीं एक दो चीज आप साथ लेके जाइए और कुछ ना कुछ चेंज लेके आइए। गॉड ब्लेस, वी ऑल प्रॉस्पर, वी ऑल कम आउट ऑफ दिस tragedy, this trouble. Thank you very much. Any questions now? Thank you, Rajesh Bhaiya, for a wonderful session. Before we take a question, I see Deepak Jalan ji is also there with us. Yeah, please put him there. Yeah, he is unmuted. Great friend. Maybe. Hello, everybody. Yes. Hi, Yes. Nice, wonderful session. Thanks. Thank you, Jitu ji. Okay. Thank Anything you, to add on the topic for today? No. Yeah, Okay. Rajesh is a great speaker.
So I'm learning. Yes. Thank Deepak. We have certain yeah, questions in the chat box, Rajesh Bhaiya. Tell You me. see, as you said about the smartphone, you see, this is the story of every house and every household. बेसिकली कि जो बच्चे लोग जो हैं जो एडिक्टेड हो जाते हैं मोबाइल गेमिंग से, स्पेशली दिस पबजी एंड ऑल, so what should be done actually? You see, this is also very relevant for the children developing in a family, you see, family business environment. So what should we do? We know this is a problem, but what should be done actually? Can you throw some light on this? देखिए, मैं कभी शादी ब्याह में जाता हूँ ना, तो बहुत सी बुजुर्ग औरतें बैठी रहती हैं, आपस में बात करती रहती हैं कि अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। ठीक है, तो मैं एक ही बात पूछता हूँ, आपने की थी? अगर आपने की थी तो आपके बच्चों को संस्कार मिल जाएंगे। मैं ऐसे केसेस जानता हूँ कि फादर जो है अपने बच्चे के लिए तो कॉलेज में भी जूस का ग्लास लेके ब्रेक में खड़ा रहता है, लेकिन अदरवाइज उसने अपने पेरेंट का ठीक से केयर नहीं किया। बच्चे जो है ना, जबान को फॉलो नहीं करते हैं, वो आपके वर्ड्स को, इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते हैं, वो आपके बिहेवियर को फॉलो करते हैं। हम खुद भी तो वही करते हैं ना। जब हम दिन भर मोबाइल फोन लेके चिपके हुए बैठे हुए हैं और उसमें इंग्रोस्ड है और उनको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, कितने सारे वीडियो आपने ऐसे भी देखे होंगे कि मम्मी और पापा खुद ही उसमें इतने व्यस्त हैं। तो दिस इज वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस, जब आप अपनी विल पावर को डेमोन्स्ट्रेट करते हो तो बच्चे में एक उस चीज की एक कन्विक्शन आती है। सेकेंडली, अगर आई कैन अंडरस्टैंड प्रैक्टिकल साइड में बहुत तरह की और डिफिकल्टीज आती हैं, तो कोई अभी जो टाइम है, कोई भी हैबिट फॉर्मेशन में जनरली साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं 21 डेज का एक फैक्टर होता है। अभी तो आपको उससे बहुत ज्यादा दिन मिले, इसमें चेंज करिए ना। एक चीज हैबिट के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हैबिट को क्रश किया जा सकता है, कम करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। मैंने ऐसे बहुत से घर देखे हैं जहां पर एकदम फिक्स है कि 1 घंटे के लिए मोबाइल फोन, दैट्स इट, उसके अलावा नहीं मिलेगा। टीवी वो नहीं रखते अपने घर के अंदर में। तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे विल पावर इतना स्ट्रांग हो जाता है। आप में से जो कोई भी एडिक्शन के दौर से गुजरे होंगे, आपने देखा होगा कि मैं गुटखा 2 बारी खाऊंगा, 3 बारी खाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। गुटखा पूरा का पूरा या तो छूट जाता है। क्योंकि मोबाइल फोन लाइफ की एक एसेंशियल चीज भी है और आपको एजुकेशन से भी लिंक हो गई है, आप उसको जितना ज्यादा खुद के बिहेवियर से और स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन में रिवार्ड का, हैबिट के ऊपर मैं जीतू जी, मैं 1-2 किताब आपसे शेयर कर लूंगा हैबिट के ऊपर में, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट एरिया हैबिट होता है। ठीक है, वो हम लोग को मेक और ब्रेक करती है। सो आई शेयर विथ यू एंड दैट यू कैन सर्कुलेट। दे आर वंडरफुल बुक्स। मिनी हैबिट्स, छोटे छोटे चेंज। आप मॉर्निंग वॉक करने नहीं जा रहे हैं, बोलिए मैं नहीं जाऊंगा, मैं खाली जूता पहन के नीचे उतरता हूँ, इतना सा प्रॉमिस करिए। अब बड़ी बातें बंद हो गई है, प्रैक्टिकल बात करनी पड़ेगी। अरे जब जूता पहन के नीचे उतरेंगे ना, 10-5 मिनट घूम के भी आ जाएंगे। तो इस तरह से, और कहाँ अपने आप को पैम्पर करना है, कहाँ अपने आप को गिफ्ट देना है, बच्चे को भी कहीं ना कहीं ये क्रेडिबिलिटी लाना है कि तुम नहीं करोगे अभी तो बदले में तुमको ये मिलेगा और वो मिल जाएगा। जैसा मैंने पहले भी बोला था, इट्स ए वर्क इन प्रोग्रेस, वी ऑल हैव टू स्ट्राइव फॉर इट एंड वी ऑल फेल। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं एक परफेक्ट पेरेंट हूँ, ऐसा नहीं, वी ऑल हैव टू वर्क टुगेदर ऑन दिस। rightly said that कि we set an example, but एक मेरा क्वेश्चन है पर्सनली कि जैसे मेरे छोटा बेटा एक्चुअली अपने बड़े बेटे से बोल रहा था कि पापा तो हमको बोलते हैं कि मोबाइल जो है ये शुड नॉट यूज, और दिन भर जो है ये आप जूम में और उसमें लगे रहते हैं, बिकॉज यू सी आई ऑल्सो डू ऑफिस मीटिंग इन दी जूम एंड ये सब सेशन चल रहा है। I know. बट ये क्या है ना, बिकॉज वी आर क्लिंग टू द टेक्नोलॉजी, इसमें हम लोगों को करना ही पड़ेगा, बट ये कैसे हम उनको समझाएं बट दिस इज आवर जॉब एंड योर थोड़ा देर साथ बैठा लीजिए, बोर होके भाग जाएगा। राइट, मैं आई अंडरस्टैंड, दैट्स जोक्स अपार्ट, वो तो मैंने मजाक में कह दिया, लेकिन आई थिंक दे अंडरस्टैंड आफ्टर ए व्हाइल कि आप ये खेल नहीं खेल रहे हैं। कि आप उसको भी बोल दो ना, क्या चल मोबाइल ले, तू इसमें ये कर, ये वाला कर, तू भी कर, चल तू इसको कर, जिसमें लर्निंग है या कुछ। जीतू जी, एज आई टोल्ड यू, ये इतनी पावरफुल है, और साइकोलॉजिस्ट हायर किए हुए रहते हैं। मैं एफएमसीजी कंपनी से भी जुड़ा हुआ रहा हूं, मैं जानता हूं कि कैसे एक टीवी सीरियल बनता है जिसको कहां पर एंड किया जाता है कि दूसरा दिन आप डेस्परेट होकर उसको देखने चले जाते हो। तो ये सारी चीजों का इन्वेंशन, आज क्यों एप्पल का इतना बड़ा पैसा देने आदमी जाता है, ये सब चीजों में ह्यूज, मतलब मैं क्या बोलूं, इतने दिमाग लगे हुए हैं। तो ये लड़ाई तो चलेगी। फिर भी ऐसा भी नहीं, हम लोग ऐसा भी एग्जांपल देखते हैं कि बच्चे अपनी विल पावर डेवलप कर पाते हैं और आगे बढ़ पाते हैं। So we have Bimal ji from Agra. He is saying that because of the current scenario, should we take a break from the current business if we can be sustained and revive it when situation is easing in the future?
What he means to the Bimal ji, namaskar. I think I know him. He is a good, very good businessman. और वो शायद पूछ रहे हैं कि हम लोग पूरा ब्रेक ले लें. That's very contextual. It will be unfair of me and inappropriate of me to make an ad hoc comment on this. कि आज हम लोग पूरा ब्रेक ले लें, पूरा बंद कर दें, क्योंकि बंद करने की प्राइस होती है, चीजें जीरो कॉस्ट पे चली जाती है. रनिंग चीजें को बेच पाना, जैसे हम लोग करियर में बोलते हैं ना कि नौकरी खोजनी है तो जिस नौकरी में रह रहे हो रहते रहते ही उसकी खोज लो नई नौकरी, नहीं तो फालतू जो आदमी जॉबलेस है उसको जॉब मिलना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है. उसी तरह से बंद पड़ी फैक्ट्री की प्राइसिंग नहीं हो पाती है. क्या होप दिख रहा है आगे में, जिस बिजनेस में भी आप हैं उसमें स्टार्ट करने का क्या होप है? इट विल डिपेंड ऑन लॉट. बट आई विल टेल वन थिंग, यस, वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अब ये वाकई में ये परिवर्तन इस नेचर का हो गया जिसमें रिवाइवल की कोई गुंजाइश नहीं है, तो अभिमन्यु मत बनिए. मैक्सिमम लोगों को क्या होता है कि अंदर घुसना तो आता है, निकलना नहीं आता, ईगो अटैच कर लेते हैं. तब फिर जो हिट लेना है ले लीजिए, क्योंकि अगर आपके पास में दूसरी एक अपॉर्चुनिटी खड़ी है तो आपकी टाइम की, एफर्ट की, सबकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, तो आप कम से कम उसको वहां तो लगा पाएंगे ना फिर. Right. It's basically just a statement. I mean, if you can add to it, any company is a good or bad as they handle their surplus fund. A lot of company can make profit, but their future is determined by how they use the profit. So this Ravindra Bhatia is just making a statement. I think that you Yeah, can add something on this. Ravi is a very good technocrat. He's very good in technology business and doing wonderfully well. He has multinational presence. And yes, cash is the king. Cash is the king. It opens up lot of options, but be watchful of that cash. There will be lot of, अगर पता चल जाएगा ना रवि जी अभी कि इसके पास कैश है, सब पहुंच जाएंगे. बहुत वाचफुल रहिए, अपॉर्चुनिटी बहुत आने वाली है और इसको तो बोला ही नहीं जा सकता है कि. Right. So if any more question, you can raise your hand so that I can unmute you. You can ask the question directly. Jitu ji, even if don't announce the name, you can simply ask the question. Some people may not want that to be quoted, so don't announce the name also. No issue, no issue. But so one question we have in the chat box. Please tell us more about the technology is exponential and humanity is linear. I mean, myself don't know what this statement means. Please. No, you have asked a very good question. आपको मैं एक, जीतू जी इसके बाद कंक्लूड करेंगे, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको ठीक से डील कर लेता हूँ. आप लोगों ने अभी मशीन लर्निंग के बारे में बहुत सुना होगा. आप कोई भी है, मैं बढ़िया से समझा देता हूँ और उसके अगेंस्ट में ह्यूमन बीइंग कहाँ स्टैंड करते हैं वो भी बता देता हूँ. कल्पना करिए कि एक हाउस होल्ड वर्क करने का एक रोबोट भी आजकल आने लगा है, ठीक है, जो घर के काम करता है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मशीन लर्निंग जो एक फीचर है, उसका मतलब क्या होता है कि उसको मैकेनिकल फीचर मिल जाते हैं और उसमें एक लर्निंग सिस्टम डल जाता है और वो ऑब्जर्व करके सीख लेता है. पहले हम लोग मशीनों को कैसे जानते थे? प्री प्रोग्राम रहते थे और जो प्रोग्राम डाल दिया जाता था वो फंक्शन वो एग्जीक्यूट कर लेते थे. मशीनें पहले ऐसी होती थी. मशीन लर्निंग में क्या होता है, मैं एग्जांपल से बताता हूँ आपको. सपोज वो हाउस होल्ड रोबोट 5000 बने और वो 5000 डिफरेंट एथनिसिटी के, डिफरेंट कास्ट के, डिफरेंट रेस के, डिफरेंट कल्चर के हाउसेज में चले गए. अब वो 5000 देख रहे हैं एक हिंदू घर में साड़ी का आयरन करना कैसे होता है. अब साड़ी भी 500 वैरायटी की होती है, तो 500 अलग अलग घर में जब 500 वैरायटी की उन्होंने साड़ी देखी, धोती देखी, अलग अलग तरह के ड्रेसेस का आयरन होना देखा उन्होंने और उनका सिस्टम उसको लर्न कर रहा है. मुस्लिम घर में गए, क्रिश्चियन घर में गए, हर जगह डिफरेंट डिफरेंट घर में गए और उनका एक सेंट्रल सर्वर है और ये सारी लर्निंग पुल होकर एक जगह जमा हो रही है. नाउ जस्ट इमेजिन कि नेक्स्ट अपडेट जैसे हमारे फोन में आता है ना, वैसे अपडेट जब आएगा 1 महीने बाद, तो वो 5000 के 5000 रोबोट इस पूरे कलेक्टिव नॉलेज के साथ एम्पावर हो जाएंगे और 5000 एकवा पीस जब निकलेगा तो ये पूरे नॉलेज के साथ निकलेगा. नाउ इमेजिन कि आइंस्टाइन का भी लड़का है ना, उसको शुरुआत एबीसीडी से करनी पड़ती है और हमारे यहाँ तो शिफ्ट की प्रॉब्लम है कि काम करते करते थक जाते हैं. इमोशंस हमारे होते हैं, मूड खराब हो गया तो हमारा बिहेवियर बदल जाता है. अब एक मशीन लर्निंग एम्पावर्ड एक कोई चीज है और हम ह्यूमन बीइंग, हम उनसे कहाँ कंपीट कर पाएंगे. तभी मैंने बोला कि ये जो एम्पैथी है, ये जो लेडीज की जो सॉफ्टर साइड है, इनकी वैल्यू बढ़ने वाली है और रैशनल जितनी चीजें ये सब थ्रेटेड है. ह्यूमन बीइंग क्या करेंगे?
ये क्वेश्चन हम लोग थोड़ा 15-20 साल बाद के ऊपर छोड़े हुए थे। इस डिसरप्शन ने सारे क्वेश्चन को प्रीपोन कर दिया है। हम ऐसे भी तो पूछने लगे हैं कि अब देखिए, कहीं कोई फैक्ट्री में जो लेबर भाग गए, लोग बोलते हैं उनमें से काफी तो वापस ही नहीं आएंगे, वो बाई फोर्स ऑटोमेशन में चले जाएंगे, और उसका जो इफेक्ट आएगा, जॉब्स अपने आप और भी कम हो जाएंगी। सॉल्यूशन जो है ना थोड़ा डिफिकल्ट है, और ये जो पैसा बांटने वाला जो सिलसिला शुरू हुआ है ना, ये बंद होगा कि नहीं होगा। कुछ लोग बहुत पैसा कमाएंगे, रीडिस्ट्रीब्यूशन के मैकेनिज्म को आना पड़ेगा, और रूरल सेक्टर कितना स्ट्रांग होता है, ये सब बहुत तरह के कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं जिनको डील करना पड़ेगा। आई होप आई बीन एबल टू आंसर कि ह्यूमन इंटेलिजेंस और मशीन इंटेलिजेंस का जो Right. I think with this we come to a very end of a very wonderful session. I would say, Rajesh Bhaiya, thank you as always. Actually, you definitely bring lot of thoughts and lot of material whenever I discuss with you, even on a personal level too. Friends, thank you. from the today's session, the takeaways is basically, you see, what Rajesh Bhaiya has told, that education will definitely is going to become a part of our life. It will not going forward will depend on our age or rather what we do right now, but we have to embrace education every day, every part of our life. And yes, your advice, Rajesh Bhaiya, that what not to do was very much relevant in this scenario. And coexistence again amidst the challenges of family and business, that is going to be there. So it is better we adopt as faster as we can. And yes, one realization, in personally, which you made which you made me realize, that productivity has reduced much. Actually, what we are talking about the technology, that our many jobs and works are being usually taken over by the technology, but our productivity has reduced over the past decades. I mean, I think this is a very true statement to make, and we must work upon this. That how do we regain our productivity and efficiency with the improvement in technology, and sustaining success, yes, as we are told, has become a big challenge. I mean, you can be successful in nowadays in a very quick or in a very short span of time. I mean, I remember a person, Mandadar, we all can see a particular person becoming very popular in a span of maybe 1 month, but after 2 or 3 months, everyone forgets about him. So it's very important nowadays, so that you see we sustain our success or we sustain our image which we have built upon. And yes, it's more relevant in now this lockdown and even after this COVID scenario. Uh, yes, one thing more, Rajesh, we have said that no competitive advantage remains forever. So yes, we might be rather, some of us, we might be in a notion that we have a monopoly over a particular service or a product, but it's a hard reality that everything going to change. No, nothing is static in this life and in this current world. Parenting, yes, it's become a tougher day, and it's very important for all of us, including the family business or not. But it's very important that you be more careful about your parenting. And a book which Rajesh has also mentioned is relevant. I would also once again suggest you go through this book with the title "Hold On to the Kids." And at the last, there was an amazing coinage when influenced me a lot. It's about digital fasting. I mean, I think I have heard this first in a first time this word or coinage, that you should do a digital fasting maybe once in a week or twice in a week, and yes, enhancing your inner Wi-Fi. So these two words, I think it was very new to me. With this, Rajesh Vyas, thank you. Thanks a lot for this wonderful deliberation. I hope our participant over here has been immensely benefited by your thoughts, by your advices, and we will definitely go on coming back to you for a lot more thoughts and lot more advices.
With this friend, Please don't today we mind. end. Thank you. Yeah, we end this session. Please do join us today at evening 5 p.m. with the session more on the family emotion and well-being. And tomorrow morning, we are having a panel discussion on real estate issues. And for the panelists, we have Nandu Bilani. Then we have Apurva Salarpuria of Salarpuria Group. Then we have Soumya Vardhan Patodia of Signum Group and Sanjay Jain of Siddha Group. So please do join us tomorrow morning at 11 a.m. On Sunday, we are having yet another session with S.P. Tulsian. He will be talking on stock market and maybe certain tips he might give. So please do join us daily at 11 a.m. And yes, one last thing, ACA has come out with a special initiative wherein all the notification and circular which has been issued post this COVID and during the lockdown period, we have made an endeavor to bring all at one place. And this link is being updated dynamically on a regular basis. So please go through this link. I mean, you'll get everything, every circular authenticated directly issued by the ministries and authorities. So please do visit the site, and also you can share with your other groups. So with this, thank you all the participants for joining this session.